Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast. Hey guys, after a long time we are meeting after a long time. Sorry for not posting videos, but we have been busy and we have also been upgrading our setup slightly. And today also we have a huge news for you. We are going to play on the Liverpool news. So we have a guest with us who is a born die Liverpool fan. And I don't want to say again, and I don't want to take much of my time. And let's start with the episode. Paul, please give us a brief introduction about our guest, bro. तो दोस्तों हमारे साथ आज रोहन है। रोहन एक बहुत ही डाई हार्ड लिवरपूल फैन है सिंस चाइल्डहुड एंड रोहन हैज बीन टू एनफील्ड आल्सो कि अभी थोड़ा जस्ट कुछ दिन पहले कितने दिन पहले हो गया रोहन आप एनफील्ड अप्रैल में। तो और रोहन मेरे कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल टुगेदर, वी यूज्ड टू डिस्कस फुटबॉल टुगेदर एंड बहुत ज्यादा हमारे बीच में चेल्सी लिवरपूल को लेकर फाइट्स भी बहुत ज्यादा हुई है। तो दोस्तों जस्ट वेट फॉर द एपिसोड एंड इट्स गोना बी अ ब्लॉकबस्टर एंड वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉप, वी विल डिस्कस अबाउट लिवरपूल एंड हाउ द साइनिंग्स आर नॉट अफेक्टिंग लिवरपूल एंड Arne Slot also. So just please wait. And Rohan, welcome to the channel. Thank you. Great to be here. Hope the fights were physical, Paul, not only intellectual. चलो ये एजेंडा तो यही है दोस्तों कि वी आर गोइंग टू गिव यू अ शॉर्ट प्रीव्यू ऑन व्हाट द Liverpool season, what you can expect about the Liverpool season, right? Start of the season. There's going to be lots of changes, and not to the team, but to the management. And maybe that would change a lot because I don't think so. We have seen Onslaught a lot, and people saying who have seen Onslaught at all, they are lying. Especially the die-hard fans who listen to the PR agents rather than looking out for matches. But it's going to be an exciting season. It's going to be a brand new season for them. I don't want to create any animosity towards bringing in new coaches, but I think as a review, because I think Chelsea and I think Liverpool, right, are the two top 4 teams which have the new managers, I guess, right? Which have the new management and sort. So it's going to be an exciting season. So let's listen from the Liverpool fan himself. And bro, don't be so Liverpool is going to win the game. I hope you be judge. In the middle ground and play with us, because me and Paul actually we are running a podcast where we are biased for Arsenal and Chelsea, but we cut our tongue when we know we are lying, right? Let's start with you, Rohan. Yeah, I don't think, by the way, you are that fair. हितेश को तो मैं जानता हूँ, तो he is definitely not fair. Plus तुम लोग का last podcast देखा था, वो क्लॉप को लेके जो है वो भी ज्यादा fair नहीं लगा मुझे. But yeah, I am pretty not excited about the season, I would say honestly, because it's going to be a huge change irrespective of who the manager was. And manager whoever came was also fairly young, fairly inexperienced, first time in the league. Plus, I think this would be the time where, I think Liverpool fans know, but non-Liverpool fans would realize how big of an enigma Klopp was, people who don't rate him, because basically what he had been doing was getting the juice out of like whatever team he was given, and every season outperforming. So I don't think that is sustainable, and I don't think that can be easily replicated. So I would say I am not very sold on Slot, because obviously I have not seen him coach, etc. And first time in a league where Klopp had said expectations where people expect Liverpool ki kuch to jeet hi jayenge, and they have not seen pre-Klopp era when we had Brendan Rodgers. And before that wasn't the expectation. So my only fear is going back to these days, and even you see कि John Flanagan times. भी ठीक था, उसमें पैसे नहीं लगे. Luis Enrique times. तो now the fear is कि सबने, I think 19 teams, all the Premier League teams have signed a player except Liverpool. So as usual, business as usual है. So I am more concerned about that. But honestly, like, I don't want to be negative towards Slot, because but I want to be in a position where I am surprised by whatever he does. उसका record अच्छा है Feyenoord में. But the only problem is that Dutch coaches versus Premier League, that is a very different level altogether. I think Ten Hag को लेके हम देख ही रहे हैं, like how hyped he was. Plus उसका तो Bundesliga का भी experience था.
So yeah, let's see. But I'm not like anyone who came after Klopp had to be like reasonably big, and this was not it. Honestly, I don't think कि ज्यादा options भी थे. I personally liked Amorim, but वो 3 at the back खेलता है, तो that style just wouldn't go at Liverpool. तो ज्यादा बाकी कोई कोच बचा भी नहीं था. So yeah, I think our best hope was Klopp, और उसके जाने में भी थोड़ा थोड़ा उसको इतना ज्यादा मतलब ये स्ट्रेस कर दिया ओनरशिप ने कि मुझे लगता है कि वो छोड़ के चला गया, वरना वो थोड़ा रह सकता था. So that's how I am about the new season. या तो मैनेजर मार्केट तो ड्राई वैसे ही था, मैनेजर और स्ट्राइकर मार्केट तो अभी बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब कुछ टैलेंट ही नहीं है उसमें. सो रोहन, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट टू लिवरपूल, सो अभी थोड़े दिन पहले आप एनफील्ड होके आए, लिवरपूल होके आए, मर्सी साइड होके आए, वो सोशलिस्ट साइड ऑफ इंग्लैंड भी इंग्लैंड भी बोलते हैं उसे. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टू गोइंग टू द स्टेडियम, वॉकिंग आउट द स्ट्रीट्स अराउंड लिवरपूल, टॉकिंग टू सम लिवरपूल फैंस आल्सो? आई हैव सीन योर स्टोरीज एंड ऑल. Yeah, it was really amazing, because so basically I wasn't planning to go. Like mera plan, obviously, like I went into April, which is not the best season to go to England. It's very gloomy weather, rain hota hai plus cold hota hai. Like it's really bad. But what happened was कि Klopp announced in November कि this is going to be his last season. So now I was like कि एक बार like I wanted to go to Anfield while Klopp was there, because like I have a very strong hypothesis कि it will not be same for at least a few years after he leaves, and I wanted to feel the city. So it's like Anfield is exactly how it is shown in the like media and everything. It's like the whole city basically aligns around one football club. So it's not even a very big like a metro city. तो आप जाते हो तो the culture is different, but once like the moment I landed, the first thing I did was एक दो घंटे के बाद I bought a Liverpool का scarf, एंड इट वाज क्लॉप उस पे बना हुआ था. वो जब से पहना उसके बाद से मतलब मैं भी वहीं का था. लाइक दे वर लाइक मोस्ट लिवरपूल फैंस, लाइक रैंडम अंकल थे या इवन लाइक यंग बॉयज या फिर छोटे बच्चे या लाइक आंटीज, लड़कियां, सब लोग लाइक हाँ आज उस दिन शेफील्ड से मैच था जो मैं देखने गया था. तो लाइक कि आज जीतेंगे. एंड द गुड पार्ट वाज कि 3-4 एवर्टन फैन भी मिले. वो ऐसा मिडिल फिंगर दिखा रहे थे कि अरे तुम तो हारोगे, बिकॉज वी वर गोइंग फॉर द लीग एट दैट टाइम, राइट. उस समय तक उसका चाहता वो तो वो भी एक तरह से अच्छा लगा कि अरे ठीक है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि कौन कहाँ से. दे वर लाइक कि नहीं आज हारोगे. सो या द सिटी इज लाइक रियली मैजिकल. आई थिंक द गुड पार्ट इज व्हाट आई वाज गोइंग फॉर मोर देन द गेम वाज द एनफील्ड एक्सपीरियंस. तो उसमें क्या होता है कि एनफील्ड के अंदर एक पब है अपना, एंड उसमें लाइक दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लिवरपूल एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ अदर क्लब्स की जो फैंस हैं, दे आर लाइक जस्ट देयर टू हैव अ गुड टाइम, एंड दैट्स हाउ द कल्चर इज आल्सो कि वी आर जस्ट हियर टू हैव अ गुड टाइम. तो वहां पे शेफील्ड से मैच था, जीते थे, और उसके रात को मतलब 4-5 घंटे तक मतलब वहां पे ऐसे ही मतलब वो पब में पार्टी वार्टी कर रहे थे, मतलब सब लोग गा रहे थे. एंड दे नॉट ओनली सिंग अबाउट द करंट टीम, वो फर्मीनो का गाना गाएंगे, जो हमारे पास गाने भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ज्यादा ना. तो वो जो पार्ट था ना, वो सबसे अच्छा था, क्योंकि मैं इमीडिएटली एक हफ्ते बाद यूनाइटेड गया था, मतलब ओल्ड ट्रैफोर्ड यूनाइटेड का मैच देखने. तो वहां पे काफी शौक है, मतलब आई डिड नॉट रियलाइज, आई थॉट कि इट वाज अ फुटबॉल राइवलरी, बट मोर देन फुटबॉल उनका रीजनल राइवलरी है. सो मोर ऑफ द सॉन्ग्स दे सिंग, दे आर एक्चुअली अबाउट Scouse versus non-Scouse like Manchester people rather than football songs. और काफी अग्रेसिव है, बट उसके बाद मतलब तुरंत मैच खत्म हुआ, स्टेडियम खाली. इनफैक्ट लिवरपूल फैंस ज्यादा रुके हुए थे और मैं भी रुका हुआ था, फोटो खींच रहा था उनके साथ. तो बिकॉज आई वाज इन द अवे एंड, मतलब यूनाइटेड के, आई वाज इन द होम एंड, यूनाइटेड वाले फैंस के साथ मैं चुपचाप अंडर कवर बैठा हुआ था. तो आई रियलाइज्ड कि इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस. एंड आई वाज विद अ फ्रेंड हु इज रिलेटिवली लाइक अ वेरी नॉन फुटबॉल फैन, ही जस्ट गोज फॉर द एटमॉस्फेयर. तो वो एमिरेट्स गए हैं, वो एनफील्ड गए हैं, वो सारे. तो वो लेकिन एनफील्ड जैसा जो पब वाला एक्सपीरियंस था वो कहीं नहीं होता. तो ये तो हमको पता था कि क्राउड काफी मतलब ये रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा सा लगता है कि मतलब इट इज इजियर फॉर द मैनेजमेंट टू थोड़ा सा ये करना कि अरे सब अच्छा होगा, क्योंकि लोग जनरली पॉजिटिव होते हैं, तो सब भक्त है मतलब ऐसा उसमें. दे आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. उनसे बात को क्या लगता है, तो दिल भी लाइक कि नहीं. सॉन्ग्स का तो ब्रो बात ही नहीं है, मतलब मैंने तो एक वो सब ऐसा सॉन्ग भी सुना है टॉटनहम फैंस का, वो किया ना, विल बी हैविंग अ पार्टी व्हेन सोल कैंपबेल डाइज, व्हेन सोल कैंपबेल डाइज. मतलब वैसे वैसे सॉन्ग्स भी टॉटनहम फैंस के. इनके गंदे लाइक दे आर लाइक फर्मिनो का सॉन्ग है, वन डाइक का सॉन्ग है, ऐसे करके 8-10 सॉन्ग है, इवन पुराने वाले, और वो हमको सबको याद है, क्योंकि बैंगलोर में भी अगर तुम जाओगे पब में तो सेम होता है, वो 8-10 गाने हैं. और आई थिंक लिवरपूल के पास थोड़े ज्यादा है, बिकॉज कुछ हो जाते हैं ऐसे कैची टाइप हो जाते हैं. तो आई थिंक वो वाला एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा अच्छा था. तो वो पूरा सिटी लाइक मैं रात में भी गया, जैसे कि
मैच खत्म होने के बाद ऐसे पब्स वगैरह एनफील्ड से आने के बाद पब्स वगैरह में, तो वो वही स्कार्फ देख के कोई भी ऐसा अंकल आ रहे थे, वो स्कार्फ ढंग से पहना दे रहे थे ऐसे, जैसे कि मेरे को बहुत साल से जानते हो। तो या द होल सिटीज वाइब इज like really good, so it was a amazing experience. Yeah. So I mean, ये तो हमें भी लगा. I mean, the fans are more earthy, right? They're more grounded, and in terms of appreciation towards the team. I mean, they will support no matter what, right? You will never walk alone. But I've heard some criticism, like during some of the big Champions League nights. I think the aura which once was there in Anfield, like when Real Madrid thrashed them, and those sort of deal. I think this sort of dwelled the past. I mean, comparing with Santiago Real Madrid fans and how this thing. But we can't criticize the fans. I think you have one of the best bases, and you have one of the best fields, and also I think you had one of the best managers. So managers से ये आता है कि let's discuss on Klopp, right? Let's discuss on Klopp. Let's keep the let's kick the first elephant out of the room, right? सबसे biggest elephant ये है कि एक criticism direct Liverpool fans से मिला है कि Paul and Ranga, we are like quite biased take on what Jurgen Klopp has achieved in Liverpool, right? So let's first, हमारा पॉइंट यही है, राइट? मेरा और पाल का पॉइंट तो काफ़ी चीज़ों में ये है कि वी डोंट कंसिडर हिम एज द प्रीमियर लीग लेजेंड्स. मतलब लेजेंड मतलब जो हु आर एच्ड इन हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ओनली प्रीमियर लीग, राइट? मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग मैनेजर्स, दैट आई एग्री. बट इन टर्म्स ऑफ कल्ट मतलब जो ग्रेट्स हैं, लाइक एलेक्स फर्ग्यूसन, लाइक पेप ग्वार्डियोला, लाइक Alex Wenger, in terms of only Premier League, right? So that is where, I mean, I think he doesn't face the same stand as these legends. Paul, I mean, do you agree to this? I mean, it's quite a common, we are not, abusing this, our position, right? We are just saying that we accept him as one of the greatest, but not in the Hall of Fame sort of things, right? मेरा पॉइंट इसमें बस यही है कि मतलब कि जो फर्स्ट टेबल है, तो फर्स्ट टेबल आई कॉल इट कि पेप और सर अलेक्स फर्ग्यूसन. उससे जो थोड़ी नीचे वाली टेबल है दैट इज वेंगर एंड जोजे, है ना? और उसके जो नीचे वाली टेबल है दैट्स वेयर क्लॉप कम्स उस वे में कि प्रीमियर लीग लेजेंड्स की उसमें रेस में. एंड सेकंड थिंग कि मेरा बस क्रिटिसिज्म यही है कि ही डिडंट विन एनफ, कि मतलब चांसेस थे बट आई डोंट नो व्हाई मतलब क्या कि थोड़ा मतलब जिगर कम था या थोड़ा मतलब पैशन कम था कि उस वे में कि 2-3 बार मैन सिटी के ग्राउंड पे जाके यू हैड द चांस टू विन द मैच, बट उसके बाद यू ड्रू 0-0, यू ड्रू 1-1 सम ऑफ द मैचेस. सलाह ने एक बार लास्ट में जाके स्कोर कर दिया था वो वाले मैच में, वो किसका अकेंजी का कुछ गलती था शायद. तो उस वे में मतलब यू पुश्ड मैन सिटी टू द लास्ट. लेकिन ऐसा मतलब अगर इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट, तो हिस्ट्री में मतलब कॉन्टेक्स्ट को याद नहीं रखता है. जैसा मेरा पॉइंट ये है कि चेल्सी की जो 2006 से जो 2009 की टीम थी, जब तक वो प्रीमियर लीग नहीं जीते थे और उसमें बाहर हुए थे फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारे थे 2007, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम थी मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग की. उसमें कि माइकल बलैग, एससीएन वगैरह सब थे, पूरा सब कुछ था, लेजेंड्स ऑफ द गेम सब कुछ थे, पर दे डिडंट विन एवर. तो उस टीम को कोई याद नहीं रखता है. 2011-9-10 वाली टीम याद रखती है जब टॉरेस आ गया था. तो हाउ वुड बी this team will be, or this Klopp era will be remembered in the history of the Premier League. 10 साल बाद, 15 साल बाद. और उसमें और चेल्सी, एक और पॉइंट मेरा बस ये कि चेल्सी ने सिमिलर क्लॉप के टाइम पीरियड में सिमिलर ट्रॉफीज जीती हैं. इफ यू सी दैट, मतलब पता है आपको भी शायद, चेल्सी ने एक यूरोपा जीता है एक्स्ट्रा, और यू हैव वन 2 Carabao Cups मोर. बाकी सारी ट्रॉफी सिमिलर है. तो क्लॉप का एरा मतलब चेल्सी के मतलब इतना टर्बुलेंट टाइम से इतना डिफरेंट क्यों है? व्हाई वी आर मतलब मीडिया इतना ऐसा पुट्रे क्यों करता है कि क्लॉप का एरा बहुत अच्छा था एंड लाइवली थी. क्लॉप कॉम्पीटेड 3 टाइम्स इन द लीग, एक बार वो जीता और 2 बार वो एक पॉइंट से हार गया. So that's my point. And also one more thing to stress this, right? We are watching sports का जो toughest चीज होता है, that is winning. That is, you have to cross the line. Bro, India has been dominating in cricket, just for example, right? But the victors are Australia. Agar who is a better team in that particular day, it doesn't matter, right? You have to win trophies. You have to be
crowned as champions. So that is where the criticism comes. It's not about challenging, right? It's not about challenging at all. I mean, I am an Arsenal fan, right? I can't say being second to Man City that we have challenged by हम लोग challenged है. But what we say is let's go to the next season. That is what we can say. But we can't say Arteta is one of the best manager. अगर ये पेप नहीं होता तो हम लोग जीत जाते यार. पेप नहीं होता तो हम लोग जीत जाते. पेप करप्टेड है ना, इसलिए हम लोग जीत जाते. पेप ने बहुत पैसे कमाया ना, इसलिए मतलब मैन सिटी ने बहुत पैसे लुटाया ना, कि हम लोग जीत जाते हैं. So we want to hear from you a critical sort of I mean basically argument which should be, क्या बोलते सकते हैं, मतलब कुछ उसको समराइज करना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए जो हो सकता था वो तो हो ही सकता था, हमेशा तो होता नहीं, उसका नहीं है. Like I personally disagree with a lot of it, and I mean I'll keep it to like very rational football analysis, not biased at all. So I think first, like there are many flaws in what you guys said. First of all, अगर आप प्रीमियर लीग को छोड़ दो, like if you see just managers as a greatest of all time, तो उस लॉजिक से तो फिर वेंगर आता ही नहीं है, बिकॉज आर्सेनल तो पूरे जिंदगी में एक चैंपियंस लीग का फाइनल खेली. मैंने तो बोला भी नहीं. बट मुझे लगता है कि वेंगर आता है बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ ही चेंज्ड द प्लेइंग स्टाइल, व्हाट इट मेंट फॉर द कल्चर. जिस टाइप से वेंगर अकेला मैनेजर है जिसने एक बार पेप को टिकी टाका में मारा हुआ है, एक बार आर्सेनल जो विलशेयर के साथ खेलती थी. तो वेंगर का जो लेगेसी आप देखोगे एज अ होल, आई थिंक ही इज वन ऑफ द गोट्स. और वैसे भी वो 20 साल, आई थिंक जो भी मैनेजर 15-20 साल मैनेज करते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड डिफरेंटली एनीवे. सो व्हेन इट कम्स टू like rating Klopp or Pep versus, I think Ferguson and Wenger I don't keep anyway in that category, because it's impossible to compare. अगर Klopp 15 साल होता वेंगर के जैसा तो पता नहीं कि क्या जीता होता. नहीं वही वापस ना हुआ था, है नहीं ना वो. But hypothetically कहाँ से आ रहा है बार-बार ये what ifs की बात कहाँ से आ गई है वापस. मैं वही बोल रहा हूँ कि that category itself, that comparison itself is wrong to have someone जो 8-9 साल है वर्सेस जो 15-20 साल है, बिकॉज लॉन्जेविटी मैटर्स, और उनका मतलब टाइम पीरियड भी ज्यादा रहेगा, वो जीते हारे उस पर रिफ्लेक्ट करेगा. तो आई डोंट इवन पुट हिम इन दैट कैटेगरी. मैं पेप को भी नहीं डालूंगा उस कैटेगरी में, इररिस्पेक्टिव, बिकॉज दैट दोस टाइम्स वर डिफरेंट. वो 20 साल में क्या कर रहे थे, उनको यूथ का कितना % प्लेयर लेना पड़ता था फॉर बोथ वेंगर एंड फर्ग्यूसन. सो ऑल ऑफ दैट. सो माई पॉइंट इज दैट कॉन्टेक्स्ट डज मैटर, एंड इट इन टर्म्स ऑफ क्लॉप he would be greatest of all time in terms of, one of the greatest of all time in terms of overall management outside Premier League, जो उसने Mainz, Dortmund और फिर लिवरपूल के साथ किया. If you see the trajectory, it is always like Dortmund लगातार 2 साल बुंडेसलीगा जीते. It's unimaginable. उसके बाद से अभी तक हुआ है, like अभी ज़ाबी ने करके दिया है. मतलब it's just not there. कोई कर ही नहीं सकता. And it's not कि उसने ऐसे अचानक से पैसे इन्फ्यूज किए and then he did it. And लोग करते हैं पैसे इन्फ्यूज, by the way. Like मैंने देखा है, मैंने स्टुटगार्ट में रहता था, मैं एक बार लास्ट कोविड के पहले का गेम देखा था स्टुटगार्ट का. उस सीजन बुंडेसलीगा में हर फैन उसको गाली दे रहा होता था. एक क्लब था वहां पे हॉफेनहाइम करके, जहां से फर्मिनो आया था. तो उसका लॉजिक ये होता था कि वो लोग पैसे इन्फ्यूज करते थे जो अलाउड नहीं है. जर्मनी में इट्स लाइक 51-49 सिस्टम, 51% ऑफ द क्लब इज ओन्ड बाय फैंस. इस वजह से रेडबुल लाइप्जिग को, जो लाइक एक्चुअली आरबी का फॉर्म रेडबुल नहीं है, बट वो रेडबुल की क्लब है, और हॉफेनहाइम को बहुत गाली पड़ती थी. और तो उसमें अलाउड ही नहीं है कि आप पैसे लगा सको. बट क्लॉप ने वहां पे भी आपको लीग जिता के दी विद द प्लेयर्स हु नो वन हैड हर्ड ऑफ. नाउ कम टू प्रीमियर लीग, हिज लेगेसी. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगेन, अगर आप फुटबॉलिंग पे बात करोगे तो मेरे लिए you can say like trophies obviously count, but then if you attach that logic, it has a lot of flaws. एक यूनाइटेड का प्लेयर है एंडरसन बोल के, मिडफील्डर था, ठीक है, वो कुछ तो 5-6 प्रीमियर लीग जीता हुआ है. उसको जेरार्ड के सामने खड़ा करो, इज नॉट फिट इनफ टू लेस हिज बूट्स. तो इसका ये मतलब मैनेजर विल बी जज्ड ऑन ट्रॉफीज, नॉट प्लेयर्स. मैनेजर शुड बी जज्ड ऑन ट्रॉफीज. मतलब ऐसे थोड़ी है कि यार तू मैनेजर है, एक मैनेजर का एंड गेम परफॉर्मेंस, प्लेयर्स का फिर भी मतलब बेस्ट परफॉर्म करना है, लेकिन मैनेजर का एंड गेम जीतना ही. क्यों, मतलब क्यों ऐसा? प्लेयर्स का भी तो है ट्रॉफी जीतना. नहीं, ट्रॉफी जीतना है, पर वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी टीम कैसी है, साथ वाले प्लेयर्स कैसे है. लेकिन मैनेजर को तो तुम्हारी टॉप टीम मिल रही है. मैनेजर हैव द कंट्रोल टू ब्रिंग टीम इन एंड आउट of the players की. मैनेजर के पास तो कंट्रोल है ना पूरा का पूरा. तो वो दे शुड बी जज्ड ऑन द ट्रॉफीज ओनली इफ यू आर मैनेजिंग अ टॉप क्लब. अगर तुम क्रिस्टल पैलेस अगर ये सब मैनेज कर रहे हो, तो आई कैन से कि तुम प्रीमियर लीग में सस्टेन कर रहे हो, तो दैट इज योर सक्सेस. क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? तुम क्यों नहीं मानोगे कि क्रिस्टल पैलेस और ये डिफरेंट है? बिकॉज कॉन्टेक्स्ट मैटर, राइट? तुमको पता है कि क्रिस्टल पैलेस में तुमको कौन सी टीम मिलेगी वर्सेस लिवरपूल में क्या मिलेगा. नो, बट
क्रिस्टल पैलेस फैंस doesn't call themselves as a मतलब कि हम बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लब है, वो they don't call themselves. लिवरपूल फैंस कहते हैं because see अगर तुम अपने आप को बड़ा फैंस और बड़ी टीम कह रहे हो तो then the pressure should be on you to bring trophies. कहने से क्या होता है, एस्टन विला भी कहती है 2 बार चैंपियंस लीग जीती है ना, वो बड़ी टीम है भी, अभी उनका स्टेडियम भी बड़ा है, वो 4th भी है, वो नेट स्पेंड में भी ऊपर है। बट उससे क्या होता है, तुमको पता है कि एमरी ने अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि तुमको कॉन्टेक्स्ट पता है कि यार उसने कहां से टीम टेकअप की थी। अभी तुम लिवरपूल का बात करो, लिवरपूल हैड 97 पॉइंट्स एंड इट डिड नॉट विन द टाइटल, और एक बार 91। आर्सेनल की पूरी हिस्ट्री में इतना पॉइंट नहीं है, 76 पॉइंट पे लीग जीता करते थे वेंगर और फर्ग्यूसन। So I think it does matter because I mean, why it does matter? I mean, I would say a lot of things are happening right now. उसेन बोल्ट हमेशा 9.54 नहीं भागता है। हाँ। उसेन बोल्ट है ना 10.11 भी भागता है, जब उसका सेकंड वाला है ना 10.5 भाग रहा है। सही बात है, बट अगर किसी ने 7 पे जीता हुआ है तो मैं तो बोलूंगा ना कि यार, और कोई 9 पे हारा हुआ है तो मैं बोलूंगा ना कि तुम बोल रहे हो 7 वाला अच्छा है, आई अंडरस्टैंड कि 9 वाले को और अच्छा कर सकते थे। प्लस वो तुम्हारा हाइपोथेसिस गलत है कि सिटी के एंड पे हम मैच हारते हैं। भाई अभी पूरा बदल चुका है यार, टेक्नोलॉजी अलग है, स्टेडियम्स अलग हैं, पीपल रिकवर फास्टर, पीपल के पास मेडिकल स्टाफ्स इतने हाई। और लिवरपूल ये मत बोलना कि यू हैव आई मीन सम मीडियोकर मेडिकल स्टाफ और तुम्हारे पास पैसे कम है। यू हैव वन ऑफ द मोस्ट प्राइम ऑफ प्राइम, एवरीथिंग तुम्हारे पास प्राइम है। स्पॉन्सरशिप्स आर फाइन प्राइम। It's not like you are built under a category like Crystal Palace or what Brighton. That is inaccurate. Liverpool's net spend since Klopp joined is lower than Aston Villa, West Ham, Tottenham, सबसे 8th या 9th पे। Who is stopping you to spend? Who is stopping you to spend? Criticize your owner. Don't took the anger out on the other Because fans. you guys have printing as a Liverpool profits. team. Blame doesn't lie with Klopp. तुम लोग खुद का एक एनालिसिस करना, ठीक है? तुम लोग जब भी लिवरपूल का सीजन स्टार्ट करोगे ना, जब हमने जीता है या इवन 97 पॉइंट 99 पॉइंट हमने चैलेंज भी करा है, ठीक है, यू रेट, तुम उस समय जाके सोचना कि तुम लोग क्या सोच रहे थे कि लिवरपूल चैलेंज करेगी। एवरी सीजन ही इज आउट परफॉर्म। एक भी सीजन नहीं था जो लोग बोले कि यार ये चैलेंज कर सकते हैं। जो ये क्या है यार, ये कहां से बात आ गई यार? लिवरपूल हमेशा फेवरेट्स रही हैं। फेवरेट्स किस लास्ट के 2 सीजन में वो फेवरेट्स नहीं रहे, बस आर्सेनल और मैन सिटी को बोला था कि लास्ट के 2 सीजन में दे वर द फेवरेट्स। बाकी जो यूर्गन क्लॉप को हमेशा भाई जब भी वो लोग हार रहे थे दे वर द चैंपियंस लीग फेवरेट्स एज वेल। चैंपियंस लीग जैसे तुम फाइनल में हारे थे ना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, तब से तुम फेवरेट्स से लीग जीते। हां, लीग जीतने गए भाई, वो लोग चैंपियंस लीग फेवरेट्स भी तो थे। चैंपियंस लीग फेवरेट्स, और तो अगले साल यू विन, अगले साल जीता भी तुमने बार्सिलोना को 4-0 घर पे हरा के। हां, अरे आर्सेनल को तो बहुत हराया जब हम लोग ब्रेंडन रॉजर्स के टाइम में बार्सिलोना को 4-0 हरा के अगले साल जीते भी तुम। हाँ, वो तो जीत गया ना। मैं बोल रहा हूँ कि एक हर सीजन के बाद ऑल्टरनेट सीजन डिप आता था, कोई साइनिंग नहीं होती थी। 4 साल में एक मिडफील्डर साइन किया था टियागो को, और कोई भी मैं भी बोलता था कि हमारा बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि हम 3rd या 4th फिनिश करेंगे, और उसके बाद वो जूस लेके ही यूज्ड टू आउट परफॉर्म। जब हम लोग क्वाड्रुपल वाले सीजन गए थे, देयर आर ओनली एक्स नंबर ऑफ, लाइक इफ यू स्टार्ट अ सीजन एंड यू से कि हमारा बेस्ट सीजन है, यू कैन ओनली प्ले एक्स अमाउंट ऑफ गेम्स इंक्लूडिंग कि आप सारा का सारा फाइनल खेलोगे। वो कर दिया था उसने, वो कर दिया था। मतलब 1 पॉइंट लीग से हार गया, और फिर वो एक गोल से मैड्रिड में हार गया। बट मेरे को इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि हम 2 ट्रॉफी जीते थे, क्योंकि उस सीजन में भी 2 ट्रॉफी कैसे जीते थे भाई? पेनल्टीज में 0-0, you didn't even score a single goal in the 3 of the और वो लुकाकू वाला गोल था, and you also accept that कि वो लुकाकू वाला ऑफसाइड वाला जो गोल दिया था, हमारा भी ऑफसाइड था यार एक। तो वो तो मैड्रिड मतलब ऐसे बहुत कॉन्टेक्स्ट बहुत है, मतलब कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट ब्रो हर चीज पे मिल जाएगा। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लॉप हैज परफॉर्म इन स्पाइट ऑफ द ओनरशिप, नॉट इंस्टेड। जैसे वेंगर के जैसा नहीं था कि वेंगर डिसाइड, जैसे वेंगर ने जब पैसे नहीं खर्च किए थे ना और वेंगर आउट चल रहा था, दैट वाज वेंगर्स कॉल। आज भी तुम देखो जॉश क्रोंकी आर्टेटा को पैसा दिया है, एकदम राइट टाइम पे दिया है, इसलिए आर्टेटा अच्छा करा। ही हैज इन्फ्यूज्ड अ लॉट ऑफ कैश इन द लास्ट 2 सीजन, so that was somewhere required and it was not given to Klopp, and I think that is one of the reasons why he is leaving. My only point is कि तुम अगर तुम्हारा ये हाइपोथेसिस गलत है कि हम सिटी पे मैच हारते हैं, तुम क्लॉप की बात सुनोगे ना, जैसे कि जो क्वाड्रुपल वाला सीजन था उसमें हमने जनवरी में लुइस डियाज को साइन करा था। क्लॉप सेड कि हम ब्रेंटफोर्ड पे मैच हारे हैं, हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में ब्रेंटफोर्ड से ड्रॉ कर लिया 3-3 और एक मैच हार गए। सिटी पे तो हमको पता है कि हम भी ड्रॉ करेंगे या वो भी हमारे आके ड्रॉ करेंगे। दैट इज लाइक टू मच ऑफ मार्जिन्स। कभी चलो यूनाइटेड से ड्रॉप कर दिया, वो सब अलग बात है, बट हम हारते हैं क्योंकि जो वीक टीम्स है उसमें सिटी का जो विन रेट है वर्सेस हमारा जो विन रेट है वो हम नहीं कर पाते, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर स्क्वाड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर लाइक the amount of young people Klopp has taken, or like really unknown people Klopp has taken and made players. कौन? तुम उसको कौन?
कौन नहीं तू हमारे टीम में खरीदा ही कितने वाले नहीं, तू बट बता। you say नहीं, young players, मतलब- right? Who young players और तो अच्छा, टॉप में खेल रहे हैं? Can you ट्रेंड के name अलावा some? और कौन है? ट्रेंड के अलावा और कौन है? हाँ, तू बेजेटिस वगैरह को काउंट मत करना। मतलब मैचिंग तो कैसे काउंट करेगा भाई? हाँ, मतलब मैं बस बता रहा हूँ बस। किस एरा की बात करें? रॉबर्टसन रेलीगेट होके आया था जब क्लॉप के ठीक है, रॉबर्टसन ट्रेंट उसके बाद हाँ रॉबर्टसन तो दूसरी टीम से आया था वैसे भी. ही इज नॉट ए लिवरपूल ग्रोन प्रोडक्ट एनीवे. नो तो ओके सो यू सेइंग एकेडमी या फिर यू सेइंग कि मैं नहीं, आपने जो बोला, आपका जो कमेंट है मैं उस पे बोल रहा हूँ. आपने बोला ही हैज ब्रॉट अप यंग प्लेयर्स को उसने स्टार बना दिया. आई वांट टू नो हु आर द यंग प्लेयर्स एक्सेप्ट ट्रेंट. यंग प्लस नॉट नेसेसरली फ्रॉम एकेडमी ओनली लाइक ठीक है, इवन ट्रेंट. जो ओके, तुम बोलो यंग प्लेयर्स के हिसाब से बात करते हैं. ट्रेंट हाँ. रॉबर्टसन ओके. ठीक है वहां से जब माने और साला आए थे तो तुमको लगता था कि ये माने और साला आए तो साले भाई! के 24-25 आपको यंग नहीं बोल सकते ब्रो. भाई माने और सलाह कहाँ थे ब्रो? माने वाज अ वेरी गुड डिसेंट प्लेयर इन साउथहैम्पटन. लोग डरते थे साउथहैम्पटन में वो खेलता था तब. इफ यू सेइंग कि तुमको लगा था कि वो वर्ल्ड बीटर बनेगा देन यू आर लाइंग. No, not वर्ल्ड बीटर तो वो तो वैसे भी बैलन डी'ओर थोड़ी जीता है, तो वर्ल्ड बीटर तो वैसे भी नहीं है माने. थोड़ी होता है यार उसने डोमिनेट तो करा ना. तुम ही तो बोल रहे थे अभी कि लिवरपूल हर बार फेवरेट्स आती थी तुम्हारी नजर में. तो माने साला के जैसे लोगों की वजह से ही आती नहीं, थी. फेवरेट इसलिए आती थी क्योंकि बाकी टीम बहुत ज्यादा खराब थी. चेल्सी कहीं नहीं थी, आर्सेनल कहीं नहीं थी, टॉटनहम कहीं नहीं थी और बाकी वो भी यूरोप कहीं में कौन नहीं थे. स्टैंड करता था? हमने बायर्न को मारा, बार्सिलोना को अरे मारा. पाल, लेट्स स्टिक ऑन द यंग जनरेशन वाला ब्रो. मेरे को ये सुनना है यार. ये तो बहुत बड़ा, ये मैंने किसी से भी नहीं सुना है कि कॉप हैज बीन मेड स्टार्स आउट You ऑफ can't say पीपल. 23, 24, 25 year players यार. ये तो वो established young है. players नहीं उनका है. और वो 4 young साल players बचा है बस. अभी आर्टेटा अगर अभी काई हैवर्ट्स को स्टार बना देता है कुछ करके तो कुछ नहीं हो वो सकता. यंग प्लेयर्स को भी स्टार नहीं बना रहा है. काई हैवर्ट्स पहले चेल्सी में यंग था वो, लेकिन साका, young- मार्टिनेली. Havertz was rated when he joined Chelsea. हाँ. लिवरपूल के पास कोई प्लेयर रेटेड थे ही नहीं इतने जिसको क्लब ने कन्वर्ट करा. तो वही मैं पूछ रहा हूँ कौन. वही मैं पूछ एलिसन रहा और हूँ. वनडाइक छोड़ के सब. एलिसन और वनडाइक को छोड़ के सब. रॉबर्टसन ले पीछे, ट्रेंट ले, माने, साला, फर्मिनो, इसमें से सब 25-25 20-20 मिलियन के प्लेयर हैं. दैट सेज इटसेल्फ कि वो बड़े प्लेयर नहीं थे when they came. नो बट यंग नहीं है वो ब्रो. आपका Young नहीं, यंग वाला आपने बोला point है. young बड़ा है, वाला young point players को young बड़ा है. 24, 25 थे वो सबने ज्वाइन किया जब. यंग अभी भी जैसे लास्ट सीजन उसने हार्वी एलियट को सारे मैच खिलाए. Harry Elliott is nowhere decent enough to play. but we competed. We So were compete तो कोई भी कर सकता है यार. Compete तो कोई भी कर सकता है. मेरे को मेरा यूनाइटेड टॉटनहम कर रही है 34 गेम्स तक हम थे ना टाइटल रेस में विद हार्वी एलियट प्लेइंग एवरी गेम व्हिच आई एग्री ही शुड नॉट बी इन माय ओपिनियन. बट उसने उसको ऐसा बनाया है कि तू इस टीम में यहाँ पे फिट करूंगा एंड यू कैन प्ले एंड टिल 34 गेम्स वी चैलेंज. बाकी टीम्स का हमसे मच बेटर एज रेशियो है. दे आर गेटिंग बेटर प्लेयर्स ऑन पेपर बट स्टिल ही डज समथिंग व्हिच कन्वर्ट्स इनटू द पिच whether they play. हमारा वो क्या नाम है जो राइट बैक इंजर्ड हुआ. मतलब this is can you I'll summarize. Okay, I'll summarize what you said. You said कि लिवरपूल क्लॉप ने बहुत यंग प्लेयर्स को स्टार्टिंग से बढ़ाया है. हमने पॉइंट आउट किया ट्रेंट के अलावा एक और नाम बताओ. आपने एक बताया ये माने, फर्मिनियो, सला. आई डोंट थिंक कंसीडर बिकॉज दे वर ऑलरेडी 24-25 एंड दे आर नॉट फ्रॉम आई मीन दे हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एज ए डिसेंट स्ट्राइकर्स. ओके, दे वर स्टार्स आफ्टरवर्ड्स व्हेन लिवरपूल केम बट दे वर डिसेंट इनफ स्ट्राइकर्स. ठीक है. और कौन? हार्वी एलियट इज nowhere near the level of a star. He is just a Liverpool star. बस वो तो तुम लोग ने हाइप किया हुआ है उसको लिवरपूल को कि वो बंदा स्टार है. मैं बोल रहा हूँ तुम भी एग्री करते हो कि वो उतना बड़ा नहीं है. मैं भी एग्री करता हूँ और फिर भी वो हम 34 गेम्स तक हम टाइटल के लिए नहीं, बट आपने बोला ना स्टार बना दिया. मैं वो पूछ रहा हूँ कौन है इसलिए कि स्टार. बाकी टीम्स अच्छी नहीं है. हाँ. वो इसलिए बाकी टीम्स अच्छी नहीं है. ऐसे तो तू सबको डिस्क्रेडिट कर दे जो भी जीतता है कि बाकी अच्छे नहीं बट हम लोग मैं बता रहा हूँ बार्सिलोना में गावी है, अभी लामीन यमाल है, तो वो अभी पता चल रहा है कि दे आर यंग प्लेयर्स हु आर नाउ बारसा इज गेटिंग. पेड्री है और रियल मैड्रिड में था मतलब कैमेविंगा, विनी, ये सब स्टार्स बहुत ये लोग छोटे से पैदा हुए हैं जो दे वर नॉन एग्जिस्टेंट सम ब्राजीलियन क्लब. मैं वो पूछ रहा हूँ ऐसे टाइप किसने बनाया है. सिटी ने भी पाल्मर और ये दूसरा उनका लेफ्ट कौन है, ऑस्कर बॉब जैसे चीजें वो भी यंग प्लेयर ला रहे हैं. सिटी इज अ वेरी गुड क्रॉप फॉर इंडियन प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स. उनका रिको वगैरह भी अच्छा था. फोर्डन भूल गया क्या? फोर्डन तो मेन है ही. जैसे कॉनर ब्रैडली था लास्ट सीजन जब ट्रेंट गए. कॉनर ब्रैडली right Conor back. Bradley, I'm saying he's not going to play the next season. Are you sure he's going to play the next season? अरे हाँ he will. ट्रेंट का वही है. As a what? As a substitute, right? As a replacement. ट्रेंट खेलेगा as a right back. As a right back, but he's not going to replace Trent, right? That's what I'm saying. No, but they will play together. The fact that you're not giving any
क्रेडिट टू ब्रैडली, जब ट्रेंट इंजर्ड हो गया 3 महीने और उसने सारे गेम खेले। You are twisting my words. I'm not saying I'm not giving credit to Bradley, but you said you are making star out of young players. I'm saying who are those stars? Except Liverpool bubble से निकल जाओ यार. Liverpool bubble में ही मत रहो. यही स्टार है, यही स्टार है. ये नहीं, you come out of the Liverpool bubble. And then see I who are still the remember the stars. conversations where किया ना, मतलब टीम ऑफ द सीजन में ऐसे 7 लिवरपूल प्लेयर होते थे, लेकिन सीजन कौन जीता? मैन सिटी। वैसा वो नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ नहीं, मतलब मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ, अपनी नहीं, अपनी फैंस नहीं, ऑफिशियल टीम ऑफ द सीजन जो प्रीमियर लीग पंडित्स वगैरह निकालते हैं वो वाली। तो वो वाली टीम में 7 लिवरपूल प्लेयर है और 4 मैन सिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन मतलब टीम ऑफ प्रीमियर लीग कौन जीता? मैन सिटी। वैसे उस टाइम में मतलब that not be the case। अगर क्रॉस नहीं कर रहे हो लाइन, तो तुम्हारे प्लेयर्स मतलब वर्ल्ड बीटर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीट नहीं किया है किसी को, मतलब वो सेकंड पे ही है मेरे हिसाब से। एक पॉइंट से नहीं, बट यू कैन बी स्क्यूड। वही डिफीटिस्ट एटीट्यूड है ना ब्रो, की मतलब तुम यू आर मतलब गिविंग कंसेशन टू योर टीम, टू योर मैनेजर, टू योर ओनर, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि टू योर अलाउइंग कंसेशन टू योर टीम, टू योर मैनेजर एंड टू योर ओनर्स, कि चलो एक ही पॉइंट से तो हारे हैं। वो चीज सेम आर्सेनल भी कर रही है अभी। आर्सेनल भी इसी क्रिटिसाइज होती है। नहीं, आर्सेनल भी एक पॉइंट जो लास्ट डे तक लेके गए, वो 45 मिनट तक वो टाइटल रेस में थे। अगर सिटी वुड हैव ड्रॉन तो आर्सेनल वुड हैव वन। सेम के साथ भी था लास्ट डे में। हाँ, सेम के साथ भी था 3 सीजन पहले, 2 सीजन पहले। उसमें तो वो 33rd गेम के बाद ही खत्म हो गया था। नहीं, उसमें आपका एस्टन विला वाला 77 मिनट में मैन सिटी 2-0 या 1-0 डाउन थी कुछ। एस्टन विला फिर 3-2 हार जीत गए थे, मतलब अच्छा नहीं, वो और आर्सेनल का सीजन सेम था। वो सीजन और आर्सेनल तो सेम चीज। आर्सेनल मिकेल आर्टेटा को अभी इसीलिए तो आर्सेनल फैंस गाली दे रहे हैं, मतलब नॉट 90%, 10% ऑफ द फैंस और बाकी प्रीमियर लीग फैंस, कि ब्रो यू हैव वन नथिंग। एक चीज जो तूने जीता है वो एफए कप जीता है, वो भी तूने एमरी की टीम से जीता है, ना कि खुद की टीम से। और इस टीम में विनर्स नहीं है, आर्सेनल की टीम में एक भी विनर्स नहीं है, साका को छोड़ के, और साका भी कुछ मेजर पार्ट नहीं था उसका एफए कप का। तो मैं सेम चीज लिवरपूल के लिए बोलता हूँ कि यू हैव वन नॉट एनफ टू बी कॉल्ड स्टार्स। सलाह को सब अभी प्रीमियर लीग ग्रेड्स में काउंट कर रहे हैं भाई, कि तूने अभी इतना कुछ नहीं किया है, ना तो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, और ना तू मतलब ना कि तू है ना मतलब इतना बड़ा लेजेंड है कि मतलब तूने वो काउंट किया है। मैं भाई वैन डाइक को लोग है ना टेरी रियो से ज्यादा बोल रहे हैं कि टेरी है ना 2004 में लीग जीता था, फिर 10 साल बाद, एक डिकेड बाद वो 14-15 में जाके लीग जीता। इतना बड़ा करियर स्पैन रहा है टेरी का। वैन डाइक को उसमें, ये ट्रेंट को लोग है ना उससे नेविल से ज्यादा बड़ा बोल रहे हैं। नेविल ने भाई 10 प्रीमियर लीग जीता और वो वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर था। वो यूनाइटेड में मतलब यूनाइटेड की टीम में उसको रखा है, तो उस वाली टीम में तो मतलब तू बहुत बड़ा स्टार है उस टाइम नेविल को। तो ट्रेंट को तुम नहीं बोल सकते, रॉबर्टसन लेफ्ट बैक नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, बट तू खुद सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तू बोल रहा है कि ट्रॉफीज मैटर, बट देन एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। अगर मैं साला और मैं दोनों बोल रहा हूँ, मैं दोनों बोल रहा हूँ कि तूने ट्रॉफी भी नहीं जीती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि तूने ट्रॉफी भी नहीं जीती है, सलाह ने ज्यादा, और दूसरी चीज तो है ना दिखने में भी मतलब वो नहीं है, मतलब तेरी फुटबॉल देख के ट्रॉफीज देख, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि तूने ट्रॉफीज भी नहीं थी और तेरे को देख के इतना मतलब मैं एक्साइट भी नहीं होता। सेम थिंग, दैट्स द थिंग। से हम जाए ना कि कॉन्टेक्स्ट हटा देते हैं, तो साला के चार्ट, ओवर द चार्ट उसने जो करा है, हजार्ड तो स्टैंड ही नहीं करता, कहीं स्टैंड ही नहीं करता। हजार्ड के स्टैट्स कहां स्टैंड करते हैं साला के सामने? पर सीजन डजंट मैटर ब्रो, अगर स्टैट्स बोल रहा है ना, स्टैट्स डजंट मैटर, मैं नहीं बोल रहा हूं। हां, प्लेयर्स के लिए तो फिर क्यों बोल रहा है कि कितनी ट्रॉफी जीती? इज दैट अ स्टैट और नॉट? No, I am saying कि both the things कि neither you have won trophies or neither you are aesthetically pleasing or nice। तो दोनों में नहीं है। तू अपने हिसाब से कैटेगरीज क्यों बना रहा है? मैं बोल रहा हूँ कि स्टैट्स डोंट मैटर ना, तो ट्रॉफी वाली बात ही हटा दे, चाहे जीती या नहीं जीती है। तो तू कन्वीनियंटली नहीं ले सकता कि हजार्ड के केस में मैं ट्रॉफी भी देख लूं, बट ये जो गोल्स और असिस्ट वाले स्टैट है उनको हजार्ड के गोल्स एंड असिस्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं एज अ विंगर उसके, नहीं तो सलाह इज अ गोल स्कोरर, हजार्ड इज नॉट अ गोल स्कोरर, हजार्ड इज अ विंगर, हजार्ड क्रिएट्स गोल्स, आई एम ऑन योर साइड। मैं बोलता हूं हजार्ड ज्यादा अच्छा प्लेयर था, मुझे भी लगता है। वैसे तो देखेगा तो रोनाल्डिनो का करियर कितना छोटा है, तो दैट्स व्हाई आई से नहीं हजार्ड का करियर छोटा नहीं है, डोंट से दिस, हजार्ड का करियर छोटा है। हजार्ड लिल में जीता है वो जाके वो ताला भी फ्लोरेंटीना और रोमा में मचाया, उससे नहीं होता। नहीं जीता नहीं है वहां पे कुछ, हजार्ड भी लिल से जीता है वहां पे लीग, वहां से मैट्रिक पर प्लेयर्स वी जस्ट डिसाइडेड, राइट? तो तू अपने कन्वीनियंस से क्यों ले आ रहा है कि ट्रॉफी इज अ मैट्रिक? मैं वही बोल रहा हूं, मतलब मैं आई मीन आई एम सेइंग कि मैट्रिक्स कैन बी
डिफरेंट, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। definitely, तो प्लेयर के लिए मैट्रिक नहीं है ट्रॉफी। अभी क्लॉप पे ही थे, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं हजार साल वाली बात ही नहीं कर रहा, मैं तो था कि वैन डाइक को अब टेरी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि बाकी और भी कौन सा प्लेयर था वो, एलिसन को भी लोग कंपेयर कर रहे हैं इनसे, माइकल से और ये इससे, है ना, उसने भी कुछ नहीं किया है, मतलब ऐसा। तो मैं यही कुछ नहीं किया उसने क्या, वन लीग टू शो फॉर इट यार, फिर वन लीग टू शो फॉर इट भाई, लीग फॉर शो फॉर इट करना है तो फिर भाई बहुत सारे प्लेयर है जिन्होंने कुछ भी नहीं जीता है। वैसे देखेगा तो मैंने बोला ना, एंडरसन ज्यादा जीता है जेरार्ड से, तो फिर तू बोल रहा है ना कि एंडरसन ज्यादा तो नहीं, तो वो तो प्लेयर ही बेटर है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे प्लेयर्स बराबर सिमिलर लेवल के यू सी द डिफरेंट नहीं, you don't बोला ट्रॉफी इज The द thing टाइम is, you don't compare Anderson versus Gerrard. Any point of time any में day Gerrard और Anderson तो कभी compare नहीं करते हैं। राइट, कि कौन ट्रेंट कितना और नेविल को भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैंने नहीं कर कंपेयर, मैं तुम्हारे लॉजिक पे जा रहा हूँ कि अगर सिर्फ ट्रॉफी पे करेंगे तो एंडरसन इज अ बेटर प्लेयर देन जेरार्ड, फिर वियरा से भी बहुत सारे बेटर प्लेयर आ जाएंगे। नहीं तो मतलब योर प्लेयर्स हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग टू बी कंपेयर टू दीस ग्रेट्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अलग कॉन्वर्सेशन है भाई, वो अलग कॉन्वर्सेशन है कि उसको कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, बट तू बोल रहा है कि उसको रेट ही नहीं करते क्योंकि वो इतना जीता है। अगर तू ये बोल रहा है कि वो नहीं बोल रहा मैं बोल भी नहीं रहा, एलिसन को माइकल से कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो है, सलाह इज अ हॉल ऑफ फेमर। ओके, आई एग्री। मतलब सलाह जब रिटायर होगा, ही इज गोइंग टू बी अ प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेमर। आई मीन, ही इज वर्दी ऑफ इट। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। हजार्ड जितना एस्थेटिकली प्लीजिंग था या हजार्ड जितना ये था, अगर तुम कॉन्टेस्ट देखोगे, साला का कन्वर्जन रेशियो काफी कम है। उसने अगर 5 गोल मारे एक हफ्ते में, तो उसको 15 चांस मिले होंगे। So that's what I'm saying कि the same reason क्लॉप का context matters। तुम 99 पॉइंट पे अगर हार जाते हो सीजन, 97 पॉइंट्स पे, और उसको तुम बोलोगे कि तुम एल लो, तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि उससे ज्यादा वो कर नहीं सकता था। और वो 97 पॉइंट मैंने सोचा भी नहीं था। इवन आर्टेटा भी थोड़ी ना, कितने पॉइंट पे हारा आर्टेटा अभी एक्चुअली इस सीजन का? 89। तुम एक बार 90s वाले इसमें आके देखो कितना कम मार्जिन होता है। तो ये डिफीटिस्ट नहीं है भाई, वो उस पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्लस मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अगर उसको ओनर्स ने, लाइक व्हाट वी डू इज वी गो 1 प्लेयर शॉर्ट, अगर एक प्लेयर और दिया होता तो वो जीत जाता। ऐसा थोड़ी है। कब नहीं मारा है हमने सिटी को? हमेशा मारा है। यूरोप, तू बोल रहा है कि बाकी टीम कमजोर है, यूरोप में सबको मारा है। जब चैंपियंस लीग जीते थे तो बार्सिलोना को मारा था, बायर्न को मारा था। तो ऐसा नहीं है, क्लॉप की टीम वाज वर्ल्ड क्लास, इट कुड हैव बीटन एनीवन। वो सबको हरा सकती थी, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को जहां से पता चल रहा है ना पाल, मतलब लिवरपूल इज अ टीम ऑफ व्हाट इफ्स। मतलब वो व्हाट इफ्स पे ही जीते हैं। मतलब उनका अलग ही सपना चलता है, उनका अलग ही ड्रीम लाइन चलता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं fans are content, बस मेरा वो exactly, हाँ वही है ना, that is why you guys are contented। मतलब I am seeing a touch of Tottenham in though, मतलब अगली बार तुम अच्छा खेलो, बड़ी टीम को, हाँ एग्जैक्टली, नहीं तो I don't care। मतलब ऐसा Tottenham मैं बोल रहा हूँ कि एंगर है, बट वो डायरेक्टेड गलत जगह है। तुम बोल रहे हो कि क्लॉप से कंपेयर करो, और उसका वो मैं नहीं करूंगा। नहीं, क्लॉप पे अगर तुम ओनर्स को अगर 70% दे रहे हो, तो 15-20% शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड क्लॉप। की मतलब भाई कि तू यू शुड हैव आस्क्ड, जैसे जोसे मरीनो लड़ता था उससे, ओनर से, यू शुड हैव आस्क्ड। एग्जांपल है, उतना नहीं, मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यू शुड हैव आस्क्ड फॉर मोर। जैसे अभी आर्टेटा कर रहा है कि वो एडू के साथ मतलब कर रहा है ना, वो कि अच्छा कालो फेरी ले आया, अभी डिफेब्रियल रुइस की बात चल रही है। ऐसा पता क्लॉप, लेकिन अब है ना, क्लॉप के बारे में बहुत हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कि मतलब आर्ने स्लॉट, मतलब जिसका अभी बहुत ट्रोल भी हो रहा है, हॉर्निस। अभी पाल जहां से पता चल रहा है अभी, ये तो व्हाट इफ का कहानी है। तो व्हाट इफ की कहानी में तो व्हाट इफ ही होता है भाई। इतना सिंपल है, इनका एक्सपेक्टेशन ही कम है। मतलब क्लब का एक्सपेक्टेशन ही कम है, दैट दे हैव टू जस्ट चेस। उनको बस सीरीज तक आना है। इवन टू कम आउट ऑफ लिवरपूल, मैं बता रहा हूँ, तुमने आर्टेटा कर लिया है। तुम जाके देखो, अगर पेप तो खैर रहेगा भी नहीं मुझे लगता है। पेप का जो एरा था, वो जो एरा है, उसमें तुम्हारी कोई टीम तो पास भी नहीं आ रही। और चेल्सी वन सीजन हाँ, तो लिवरपूल एक ही जीती, वो भी कॉन्टे था इसलिए, ठीक है। हाँ, तो वो भी पेप्स को हराया ना उसने, तो कॉन्टे ने, मैं तो करता हूँ कॉन्टे को रेट। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि चेल्सी वन, मतलब ऐसा आपको ऐसे नजरअंदाज मत करो। चेल्सी वन इन दैट फेज। चेल्सी ने प्रीमियर लीग भी जीता और चेल्सी ने चैंपियंस लीग भी जीता, और पेप को हरा के जीता चैंपियंस लीग, ना कि टॉटनहम को हरा के। मुझे लगता है चैंपियंस लीग का टूचेल अच्छा मैनेजर है, वो नॉकआउट टूर्नामेंट का अच्छा मैनेजर है टूचेल। बट मेरा पॉइंट ये है कि जितना चेल्सी ने जीता उतना ही लिवरपूल ने भी जीता है ना, तब बात करेंगे। आई डोंट थिंक इवन आर्टेटा विल बी एबल टू डू इट। और 90s वाले लीग में आके हार के और उसके बाद वापस से जीतना, क्यों यार ये क्यों है? ये आर्टेटा का क्यों? ये पूरा गेम उन्होंने व्हाट इफ का खेला है।
आर्टेटा एक लीग जीता, he has matched Klopp's Klopp's legacy. legacy, बस एक ही लीग एक लीग जीतना है जीता। मुझे, मतलब हाँ, कौन जीता है? ऐसा व्हाट इफ का खेल है ना, आर्टेटा अगर जीतेगा तो हाँ What if- अग्री। मतलब हाँ, अगर legacy- जीतेगा वही भाई, व्हाट इफ का खेल है तो व्हाट इफ में तो जीत ही सकता है ब्रो। व्हाट इफ we have the last 10 year history, क्लॉप के अलावा सिटी के साथ कंसिस्टेंटली कौन क्लोज आया? That is not आर्टेटा, a- 2 बार आर्टेटा आया और 2 बार दो बार लिवरपूल तुम आई आए है। बस, That is very 2 different. बार तुम आए हो और 2 बार दो बार आर्टेटा आर्टेटा आया। है। और एक बार तुमने जब लीग जीता था तब सिटी वर नोवेयर। नोवेयर भाई, वो उसमें कोविड हमने- लीग था भाई, नहीं नहीं, कोविड मैं लीग। बता रहा हूँ कि सिटी से compete नहीं देखो, किया तुमने, सिटी से तुमने 2 बार एक बार- compete किया है, तुम एक दोनों बार- बार हार गए, और आर्सेनल से तुमने, आर्सेनल ने भी 2 बार compete किया और दोनों बार हार गए आर्सेनल। हाँ। 26 games were played with fans. सिर्फ 12 गेम हुए, तो 12 गेम में कौन क्या उखाड़ लेता जब अवे फैंस के साथ? मैन सिटी नहीं तभी नहीं, मैं उखाड़ती है फैंस का मैं बात ही नहीं कर रहा, भाई, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 22 पॉइंट से लीग जीते थे, तुमको लगता है कि वो लीग हारते थे? 22 points। तुम वो वाली लीग है ना, मतलब दिसंबर में ही जीत गए थे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम कि तो तुमने उस सीजन मैन सिटी से compete ही नहीं किया। तुमने हाँ, किसी से, तुमने Man किसी, City से हमसे तुमने compete। तुमने हाँ। किसी से भी compete नहीं किया। यू वर फर्स्ट और बाकी सब मतलब बहुत 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 बिलो सेकंड थर्ड थे वो। हाँ। तो तुमने किसी से compete नहीं किया, उसेन बोल्ट की तरह तुम भागे और तुम जीत गए। वैसा तुमने जब 2 बार मैन सिटी से और compete किया, पिछले साल भी ना, पिछले साल भी तो करा 34 गेम्स तक तो ट्रिपल हॉर्स रेस था। I don't अच्छा, guess। बोल सकते चलो ठीक है, 34 games चलो, it was a triple horse। बोल सकते ठीक है हैं। ठीक है ठीक है, चलो तुमने 3 बार किया कंप्लीट और आर्टेटा ने भी 2 बार कर लिया। और अगर ये सीजन में वो आर्टेटा ने 2 बार कैसे किया भाई? वो पिछले वाला जो सीजन था उसमें 32nd गेम वीक में ही वो न्यूकासल से हार के सब खत्म हो चुका तो था। जो तुम्हारा 34 वाला काउंट कर रहे हो, तो तुम आर्सेनल वाला भी, आर्सेनल वाला भी काउंट, आर्सेनल वाला भी काउंट क्योंकि भाई हम लोग टॉप ऑफ द लीग थे, they were हम लोग top of the 91 league, सबसे ज्यादा हम लोग top of the league थे। 90% of the time top of the league थे, 90% of the time they were top of the league। बट लास्ट गेम तक नहीं गया था ना, इट वाज 32nd गेम में आर्सेनल खुद ही हार के उस उन्होंने दे दिया था। इट वाज नॉट 34th 35th अरे नहीं, आर्सेनल फैन है ना, वो लगातार 3 मैच हारे थे, न्यूकासल सबसे हाँ, पर हारे। तब भी मैथमेटिकली वो पॉसिबल था उस टाइम भी वैसा। Automatically, मैं बोल रहा हूँ लास्ट गेम तक जब जाओगे ना, इफ यू हैव टू पुश सिटी टिल द 90th मिनट ऑफ द लास्ट गेम, और जब 90 पॉइंट के बियॉन्ड जाते हो ना मतलब लूजर्स के भी मतलब कैटेगरीज है bro। Categories हो। मतलब हाँ कि तुम 32nd में आ गए तो तुम नीचे वाले लूजर हो, तुम 34th आ गए तो नीचे तुम है ना, मतलब क्या बोलते हैं, तुम है ना 90th में तो तुमने पुश किया तो वाले लूजर हो, तो मतलब कैटेगरी से नहीं लूजर्स। समझेगा, तूने इतने दिन में नहीं करा है ना लीग में उस लेवल पे कम्पीट, तो तूने मोरिनो ने वैसे एक बार किया था ना 90+ पॉइंट्स, किया है ना उसने। कॉन्टे ने भी किया 91 पॉइंट्स, हाँ, जब तो अगर- कॉन्टे ने 91 पॉइंट्स किए थे, मरीनो ने 95 किए थे। तो वो अलग ही लीग है, दैट इज अ सेपरेट लीग ऑल टुगेदर। उस पे तू 95 लाके तू जीत, या 96 नहीं 94 लाके मैं बोल रहा हूँ कि यू हैव ओलंपिक में मेरे को ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा नहीं तोड़ना है। ओलंपिक में मेरे को 100 मीटर की रेस में मेरे को हमेशा वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं तोड़ना है। अगर मेरे सेकंड वाला 10.5 का जा रहा है तो मैं 10.2 पे जाके मैं गोल्ड जीत रहा हूँ, तो दैट इज एनफ फॉर दैट सीजन। बट लॉजिक फ्लॉड है ना, तू वन ऑफ इवेंट्स को कंपेयर कर रहा है पूरे साल का। अगर तू पूरे साल लाके 94 पॉइंट्स लाता है, दैट सेज अ लॉट अबाउट योर सीजन। अब जैसे आर्टेटा ने ये सीजन किया, उसको तू ऐसा डिस्क्रेडिट नहीं कर सकता ना, जो आर्टेटा ने No, करा। no, no, what अभी you're हमारा saying is- हमारा वीडियो भी एक था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का बेटर सीजन था, आर्सेनल का कि हाँ, मैनचेस्टर मतलब- वन समथिंग, दैट्स द कन्वर्सेशन। मतलब the thing is, what you say is कि we agree to that कि we are not discrediting your Liverpool team. We are not saying that. But I'm what not rating them as highly. But you That's shouldn't be top of Man City because Man City top रही है। इंटेलेक्ट मतलब हर चीज में मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हमारे सब सारे गेम्स हमने अच्छे खेले, बस जो गेम जीतना था वो नहीं जीत पाया। बट मैन सिटी वो गेम जीत गई ना, एट द एंड ऑफ द डे वो गेम जीत के वो सबसे पहले बात तो लीग में तुम ये बोल ही नहीं सकते कि कौन सी गेम जीती, बिकॉज इट कुड बी लाइक आई It सेड, doesn't matter, bro. It doesn't matter, right? It doesn't matter. Doesn't matter. When you are Same. playing, अभी आपने बोला you are playing for 90 something odd points. So गलती क्या है? गलती या दो या 3 मैचेस में ही हो सकती है, या 1 या 2 मैचेस में हो सकती है, right? So वो हेड टू हेड जरूरी नहीं है। so you अगर if you have the capability, then you have to win all the things. Why are you drawing matches? मतलब लीग में हर टीम ड्रॉ के लिए क्यों खेलती है? उनको चाहिए जीतना, तो हर मैच जीतो ना. So you have to have this. तो that's what I'm saying कि that level जिसमें आपको अब हर मैच जीतना पड़ेगा, जो आर्टेटा को भी अभी समझ आया लास्ट सीजन में, वो लेवल ही अलग है एज कंपेयर टू समवन विनिंग ऑन 76, 82 और समथिंग एल्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि फुटबॉल चेंज हो गई है और सब लोग अभी सारा मैच जीतते हैं। अभी भी लिवरपूल ही लगभग सारा मैच जीत रही थी और मैनचेस्टर सिटी जीत रही थी और सिटी लीग जीत रही थी, और ये सेम चीज आर्टेटा ने लास्ट ईयर किया, राइट? ये 10-12 साल में ये यही 3 बार हुआ है। ये सबको ही नहीं कर रहा है कि हम बोले कि अभी फुटबॉल चेंज हो गई है तो हम उसको 76 वाले को भी कॉन्टे आल्सो डिड, कॉन्टे
हाँ, कॉन्टे ऑल्सो डिड। हाँ, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये 3-4 एग्जांपल्स ही हैं, उसमें से कुछ वन ऑफ्स हैं और हम बोले कि फुटबॉल चेंज हो गई है। फुटबॉल चेंज नहीं हुई भाई, अभी भी ये 1-2 टीम ही कर रही थी और एक बार इसको जाने दो। अगर पेप चला गया तो इट विल बी ओनली रिमेनिंग आर्टेटा, और कोई टीम नहीं करेगी ना। टेन हाग करेगा, चेल्सी तो चलो उसका कोई मैनेजर होगा कि नहीं वैसा। I don't know, I don't want to discuss Chelsea. तो आई एम सेइंग इट इज वेरी कल ही सेल्टिक से 4-1 हारे। कोई एरा में आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ कि एक बार के लिए इसको छोड़ दो कि कौन जीता कौन नहीं। 90+ पॉइंट वाली चीज लगातार सीजन बाय सीजन पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप जीतो हारो, इट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए बहुत बड़ा लेगेसी लगता है। आप खुद देख लेना, क्लॉप के पहले कितनी टीम्स थी ऐसी थी जो लगातार 90 क्लॉक कर रही थी, और उसके बाद मैं सिटी को देखता हूँ ना यार। सिटी को तो मैं बोल ही रहा हूँ। सिटी तो ये बार भी 90+ था। लिवरपूल ने कितनी बार किया है? 2 बार ही किया है ना, 2 बार ही गया, हाँ वही वाला सीजन। 90+। 3 बार। एक बार जब हम जीते थे तो 99 पे रह गए ना। हाँ, और हाईएस्ट जाने का वो था, वो पहले ही जीते। कोविड वाला तो तुम मानते हो यार, ठीक है चलो तुम मानते हो, मतलब चलो ठीक है, मैं तो नहीं मानता कोविड वाला तो। बोल रहा है किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब यार सोच, मतलब द बिग टीम्स वर कंप्लेनिंग, उनके पास बेंचो इतना वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चालू थे वो सब। जस्ट रिमेंबर व्हाट द स्मॉल टीम्स वुड हैव सफर्ड। The small teams literally they would have suffered twice or thrice the what these guys would have suffered, the big ones, right? Facilities नहीं है। 26-27 games with crowd, so there is no point. हम ऐसे भी जीत रहे थे। नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड कि अब क्या होने को क्या वाला है, क्या लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब, तो क्लॉप को हटा के अब आर्नी स्लॉट को लेके आए हैं फ्रॉम फेयरनॉर्ड, राइट? फेयरनॉर्ड, हाँ। तो मतलब अनदर टेन हाग, हम यही बोल रहे थे उसे कि नहीं, हमारा मतलब ऐसा नो आई एम जस्ट गिविंग यू कॉन्टेक्स्ट कि लिवरपूल के बारे में कि हाउ डू वी, मतलब आई थिंक दिनेश अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग से देगा कि आई थिंक करेक्टली कि वी हैव नॉट ऑर्नी स्लॉट, मतलब नोबडी हैज सीन ऑर्नी स्लॉट, कि उसने एक लीग जीता है शायद डच में, एक लीग और एक कप जीता है शायद उस वे में। तो दैट्स व्हाट टेन हैग डिड आल्सो उस वे में। पर अभी टेन हैग को हम गाली अच्छे से दे रहे हैं कि उसने करा क्या है उसमें, मतलब उसका प्लेइंग स्टाइल एक्चुअली, मतलब मैं उसके ट्रॉफीज पे तो एडमायर करता हूँ उसको कि उसकी जो मेंटालिटी है कि 2 सीजन में 2 ट्रॉफीज जीत गया वो, लेकिन जो उसका क्या प्लेइंग स्टाइल उसका, मतलब इट्स नॉट वर्थ टू वॉच, प्लस इट्स अ लूजिंग स्टाइल काइंड ऑफ अ थिंग, कि तुम्हारे टर्नओवर्स इतने सारे हो रहे हैं कि तुम्हारा कभी ना कभी यू विल कंसीड गोल्स, यू विल, और तुम्हारा कीपर इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे सेंटर बैक्स आई डोंट नो कितने अच्छे हैं। तो सेम थिंग में अगर इफ यू कंपेयर लिवरपूल, कि लिवरपूल का स्क्वाड डिक्लाइनिंग स्क्वाड आई विल कॉल्ड इट, कि मतलब सलाह माइट गो नेक्स्ट सीजन, और इस सीजन मतलब ब्रो एक मैंने ट्वीट किया था आपको कि यार 2 साल पहले जब लिवरपूल का गंदा सीजन आया था, 5th या 4th फिनिश करने वाले थे, कि दिस सीजन वुड बी अ डिक्लाइनिंग सीजन, जब क्वाड्रपल के बाद वाला सीजन था, कि मतलब कि दिस वुड बी अ डिक्लाइनिंग सीजन, क्योंकि माने जाने वाला है और उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन इस सीजन जो होने वाला है कि सलाह माइट लीव, तो एक सीजन पहले आई डोंट नो कि उसका मोटिवेशन क्या है, लोग कहता मोटिवेशन, कि उसका मोटिवेशन क्या खेलने का, कि उसको 1 साल बाद 100 मिलियन मिलने ही वाले हैं। तो अगर तुम इसको नोटिस पीरियड कंसीडर करोगे कि तुम काम करने का मन नहीं है, सेम काइंड ऑफ थिंग। सलाह वैन डाइक की, हाउ इज ही वैन डाइक नाउ करंटली, हमने यूरोस में देखा है, ही वाज नॉट दैट ग्रेट, ही वाज डिसेंट बट नॉट दैट ग्रेट यूरोस में, हिज टीम कंसीडर्ड गोल्स। हाँ, यूरोस में तो अच्छा खेला यार वो, वन डाइक तो नहीं मतलब अच्छा खेला है, मतलब डिसेंट है, मतलब नॉट दैट ग्रेट, कि काफी लोगों ने उसे मतलब कटा के मतलब दे गिव चांसेस अच्छे से, आके वाज डिसेंट, आके आई से कि वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन द यूरोस, मतलब नेदरलैंड की टीम में। वैन डाइक का मतलब ही वाज डिसेंट एनफ। उसके बाद ट्रेंट का बात चल रहा है अभी कि, और इन तीनों का दूसरी बात है कि एक ही सीजन बचा है शायद कॉन्ट्रैक्ट का, ट्रेंट तो रुक जाएगा, बट हाँ ट्रेंट का मतलब शायद बात चल रहा है कि वो मैड्रिड जाएगा या नहीं जाएगा, पर देख आई थिंक ही विल रुक जाएगा, ही इज अ स्काउजर, तो उस वे में ही मतलब, लेकिन मैकमोन भी चला गया था तुम्हारा कि उस, एंड व्हाट स्टीव मैकमोन डिड, दिनेश तेरे को पता है, ही रैन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट। उसने मतलब ऐसा नहीं है कि लिवरपूल को कुछ कैश पैसा मिले, ही रैन डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट, और उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर ये नया कोच है, और उसके बाद तुम्हारे जो रिसेंट क्लॉप साइनिंग्स हैं, कि जो उसको मैं, और सेकंड क्लॉप में क्लॉप के पास बोला भी उस टाइम कि मतलब क्लॉप का रेट नहीं करता है, इज मतलब टैलेंट आईडी, उसका टैलेंट आईडी इज नॉट दैट ग्रेट। लुइस डियाज इज अ डिसेंट प्लेयर, मैं लुइस डियाज की बात नहीं कर रहा, डार्विन न्यूनेस जो क्लॉप साइनिंग बोलते हैं लोग, लिवरपूल फैंस एटलीस्ट, कि मतलब बेंफिका में देख के उसको, तो ही वाज नॉट दैट गुड, मतलब फुटबॉल भाई वो भागता है ब्रो, वो भागता है नहीं, मतलब फुटबॉल एबिलिटीज ब्रो, उसको ऐसे मत बोल ब्रो, वो भागता है ब्रो, ही कैन रन ब्रो, he can stretch the defense, और ऐसे फिर मत उसके बोल। बाद, और ये सोबोस्लाई मतलब फुटबॉलिंग के साथ ही हैज अ ग्रेट शॉट इन हिम, पर उसका मिडफील्ड कंट्रोलिंग पावर, नंबर हंगेरी में उसने हगा था ब्रो। हाँ बहुत अच्छा हगा था, ठीक है। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मतलब तुम, आई थिंक कि लिवरपूल हैव अ मतलब काइंड ऑफ अ रियलिटी चेक दिस सीजन, कि अभी तक जो क्लॉप का तुम्हें चढ़ा हुआ था ना नशा,
वो दिस विल वियर ऑफ दिस सीजन समवॉट, और उसके बाद जो तो मतलब ऐसा होता है ना कि एड्रेनलिन बहुत है तुम्हारे में एकदम से, और उसके बाद तुम्हारा जब वियर ऑफ करता है तुम्हारा एड्रेनलिन या कोई भी अच्छा, तो तुम हाउ विल यू फील? तो आई थिंक लिवरपूल वाज बोथ द फेस द सेम थिंग दिस सीजन मेरा। हाँ तो उसपे तो लाइक आई सेड, आपने स्लॉट के बारे में बोल ही नहीं सकते बिकॉज मैंने देखा ही नहीं। लाइक आई डोंट थिंक मेनी पीपल, वन थिंग आई वुड से इज कि आई थिंक सिर्फ वो वाला सीजन नहीं है उसका, जिस साल उसके 2 साल पहले जब हाँ जो कोविड वाली लीग हो रही थी, तो उसमें अनलाइक अदर लीग्स डच लीग ने सस्पेंड ही कर दिया था कि जो टॉप पे उसको टाइटल दे दो। तो उसमें क्या हो रहा था कि उसमें एक छोटी सी टीम है अल्कमार करके, वो उतनी अच्छी नहीं है, जैसे यहाँ पे समझ ले 6 और 7, जैसे टॉटनहम से भी नीचे पकड़ लो। तो उसके साथ वो आईएक्स को मतलब के साथ हेड टू हेड चल रहा था, सेकंड और था। हाँ, और उसके पास इन गेम इन हैंड था, उसको कोई जानता नहीं था उस बार। तो और लेकिन जब उन्होंने सस्पेंड किया तो उन्होंने आईएक्स को टाइटल दे दिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो आई थिंक दैट वाज हिज ब्रेकआउट सीजन, नॉट द वन वेयर ही वेंट आउट विद फेनोर्ड। तो उसकी अच्छे तो यही 2 सुने हैं मैंने। प्लस आई थिंक द की थिंग इज नॉट अबाउट मैनेजर, द की थिंग इज अब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। अभी वो मैनेजर नहीं है, वो हेड कोच है। सेम अगर आप देखोगे टेनहाग इज नॉट अ मैनेजर, वो हेड कोच। तो अब फुटबॉल स्ट्रक्चर में कंट्रोल काफी ले लिया गया है मैनेजर के साथ। लिवरपूल में तो कुछ बड़े लोग हैं, जैसे माइकल एडवर्ड्स वगैरह स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, और एक जो बॉर्नमथ वाला आया है अपना वो भी आया भी है, ही इज नॉट अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ लिवरपूल, ही इज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ एफएसजी हाँ, ऑफ फुटबॉल, कि मतलब फुटबॉल के अगर तुम और क्लब खरीदते हो तो उसका भी वो स्पोर्टिंग और डायरेक्टर वही उसका होगा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड लाइक ही इज द बेस्ट, मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सारे अच्छे प्लेयर्स हमने उसी के अंदर साइन किए, सारे नेगोशिएशन उसी ने करे नहीं, हैं। बट ही हैज अ ब्लेंडर्स आल्सो लाइक बालोटेली एंड ऑल। बालोटेली उसका टाइम में नहीं था यार, बालोटेली नहीं, काफी पहले था उसके। नहीं आई उसके डोंट, टाइम पे था, एक चेक करना एक बार, बालोटेली भी शायद उसी के टाइम पे था। ठीक है, He had few blunders also before the signings he made. ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइक रियली लो वैल्यू वर्सेस रियली लाइक गेटिंग रियली हाई क्वालिटी प्लेयर्स। मेरा ऐसा था कि यार सच बताऊं तो अगेन दिस इज व्हाई आई गिव क्रेडिट टू क्लॉक एंड आई डिसएग्री। मैं तो लास्ट सीजन ही राइट ऑफ कर दिया था, जब आपका पूरा का पूरा मिडफील्ड ही चेंज हो रहा है। तो हाउ कैन यू हैव अ गुड सीजन? सो ऑन पेपर यू शुडंट हैव अ गुड सीजन, बिकॉज एक तो एंडो सारे मैचेस नहीं खेल सकता, एक तो वो लाइक ही इज वेरी लाइट एंड ही इज 31। तो एंडो को तो मैं राइट ऑफ कर दिया था। एंडो था डीएम में, सोबोस्लाई था उसके आगे, और मैकलिस्टर था उसके आगे। तो कंप्लीटली न्यू मिडफील्ड, ठीक है, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो पीछे कर्टिस जोन्स को तो मैं खुद भी उतना रेट नहीं करता, और उसके पीछे एलियट था जो मेरे उम्मीद के हिसाब से उसने अच्छा खेला, बट ही शुड नॉट बी स्टार्टिंग एवरी मैच। तो आप हेंडरसन चला गया, फेबिनियो चला गया, आपके पास कोई है नहीं, टियागो पूरा सीजन ही अनफिट रह गया। तो टेक्निकली ऑन पेपर वो सीजन भी अच्छा नहीं करना चाहिए था हम लोग, क्योंकि पूरा नया मिडफील्ड को लेके कौन अच्छा करता है। बट अगेन आई गिव क्रेडिट टू क्लॉप अगेन कि उसने ऐसा खेला। प्लस एंडो हाफ सीजन काफी अच्छा खेला, उसने यूनाइटेड वाले मैच में तो अकेले ही 2-2 लोगों को पॉकेट में रख लिया था। मैकलिस्टर इज अ जेन्युइनली वेरी गुड प्लेयर, मतलब मैकलिस्टर को बहुत हाई रेट करता हूँ। उसको आधा सीजन हमने 6 में खिलाया, जो कि उसका पोजीशन नहीं है। लोग कहते हैं कि अर्जेंटीना के लिए वो 6 के लिए खेलता है, बट उनका पूरा का पूरा मतलब वो काफी अग्रेसिव खेलते हैं, वो 6 वाले भी पुश कर रहे होते हैं, और रॉड्रिगो डे पॉल उस पोजीशन में नहीं खेल सकता। डिपॉल कांटे वाला रोल प्ले करता है जो जॉर्जिनो मतलब 6 खेल के करता था। हाँ, तो वो चीज वो नहीं कर सकते सेम लिवरपूल में। तो मेरे को लगता है मैकलिस्टर होता है। सोबोस्लाई पे मैं डिसएग्री करूंगा, सोबोस्लाई काफी अच्छा खेल रहा था जब फर्स्ट हाफ में, जब उसको इंजरी नहीं हुई थी। इंजरी के बाद से वो काफी खराब खेल रहा है, और वो हंगरी में फॉर सम रीजन उसको वो सिस्टम सूट करता है, वो ज्यादा अच्छा खेलने लगता है। मे बी उसका लेफ्ट और राइट का प्रॉब्लम है, बट सोबोस्लाई मुझे काफी अच्छा प्लेयर लगता है वैसे इन जनरल। इवन नूनेस के साइनिंग को मैं गलत नहीं मानता, मैं बोलूंगा, क्योंकि जब हम साइन कर रहे थे हम 3 बड़े स्ट्राइकर थे उस समय, नूनेस, अलेक्जेंडर आइजैक और लिसांड्रो मार्टिनेज मिलान का। तो लिसांड्रो तो आ नहीं रहा था, But you signed the worst of them. हाँ, तो आइजैक और नहीं, उस समय नहीं बोल सकता, तो बेनिफिट काफी अच्छा था, तो नहीं उस मतलब समय in the hindsight you signed the worst of them. तो ऑब्वियसली तो उस पे एक पे बेट लेना था, तो नूनेस पे लिया। तो नूनेस का ऑब्वियसली मतलब उतना वर्कआउट नहीं किया, हालांकि उसके स्टैट्स अच्छे हैं, बट लाइक इन जनरल ही डज गिव समथिंग व्हिच अदर्स डोंट गिव। जैसे नूनेस नहीं खेलता तो हम और गंदा खेलते हैं, क्योंकि कोई भी वो केओटिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाता। बट एनीवे, मेरा पॉइंट है कि इस सीजन तो हमने साइनिंग ही नहीं करी है। तो अभी अगर मैं बात करूंगा तो अभी आई एम बेसिंग एवरीथिंग इज ऑन द करंट स्क्वाड वी हैव। तो हमारे पास कौन है? हमारे पास, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, एलिसन बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड। वन डाइक बहुत अच्छा है। कोनाटे का प्रॉब्लम है कि वो इंजरी प्रोन है, नहीं तो अगर वो साथ में एक सीजन खेले वन डाइक के तो वो डिसेंट अच्छी पार्टनरशिप है। रॉबर्टसन को अब इंजरी होने लगी है, और सिमिकास को ये लोग टाइम नहीं देते। तो I think Robertson is done. हाँ, वो होगा भी यार, At the top level it is done. होगा भी यार। मोरिनो ने बोला था ना अपनी सैकिंग के पहले कि मेरे को तो अभी भी सपने आ रहे हैं कि वो पूरा अप डाउन भाग रहा है। भाई पता now अभी नेक्स्ट सीजन के लिए he is not your first, should be your first guy to start level. तो खत्म है, क्योंकि उतना भाग चुका है वो क्लब के सीजन में। वो हम 3-3 दिन पे मैच खेलते थे, सारे प्लेयर रिप्लेस हो जाते थे, शफल हो जाते थे, रॉबर्टसन खेलता ही रहता था 3-3 दिन पे।
तो आई थिंक उसका ये है। शिमिकास काफी अच्छा था बट उसको गेम टाइम नहीं दिया, तो आई डोंट थिंक वो भी उस लेवल पे है रॉबर्ट्सन में। तो आई थिंक लेफ्ट बैक इज अ वीकनेस। नहीं राइट जैसे कि बैक मैं बस मेरे को एक ये है कि अच्छा आप बोल रहे हो ना, तो कॉल इट अच्छा होना है लाइक सिटी लेवल, कि सिटी उसको लेगी या नहीं, क्योंकि लीग तुम तभी जीतोगे इफ यू आर एम टू कम सेकंड थर्ड फोर्थ चैंपियंस लीग अगर एम है तो ही इज डिसेंट एनफ। पर नहीं तो अच्छा, लीग से नहीं जीत सकते वैसे पर देगा तो हाँ उस वे में अगर मतलब आई एम सेइंग कि कॉन्वर्सेशन शुड बी अराउंड कि अगर तुम चैलेंज करोगे तो ही शुड बी गुड एनफ है क्या नहीं है सिटी को। बट अगेन दैट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको 11 के 11 प्लेयर एकदम वर्ल्ड क्लास चाहिए तभी आप जीतोगे। कुछ होते हैं जो उस टीम में फिट हो जाते हैं बट और कहीं नहीं होंगे। अब जैसे सिटी भी खेलती है तो अकांजी को कभी राइट बैक खिला लेती है, आगे को कभी लेफ्ट। अभी सिटी का तो नहीं लेफ्ट बट बैक जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आर्सेनल में हम क्लियर डेफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं कि मतलब व्हाट दे नीड, कि अगर उनको सिटी से लीग जीतनी है तो ये दे शुड इंप्रूव देयर लेफ्ट बैक, दे शुड इंप्रूव देयर लेफ्ट एट। ठीक है, लेफ्ट एट जो साइड मतलब राइस के साथ कौन होना चाहिए, क्योंकि नंबर 10 तो ऑडेगार्ड है ही, तो राइस के साथ कौन बंदा होना चाहिए वो। एक है उनका लेफ्ट विंग कि मार्टिनेली इज गुड एनफ और नॉट, ये ना, और स्ट्राइकर कि हैवर्ट्ज इज गुड एनफ नॉट गुड एनफ। तो दे हैव क्लियर आइडेंटिफाइड एरियाज कि मतलब कि अगर ये वो लोग अगर अच्छे साइनिंग्स कर लेंगे, जिसमें कालाफी उन्होंने कर भी लिया है, तो नाउ दे लीग टू मोर साइनिंग्स मेरे हिसाब से, बेसिकली एक स्ट्राइकर और एक लेफ्ट मिडफील्डर वैसा वाला, क्योंकि ट्रोसार्ड ठीक है खेलने में। तो ट्रोसार्ड इस लेवल पे कि वो सिटी से compete कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर जब अच्छे अपने प्लेयर्स को बोल रहे हो तो उसमें बोलो कि वो सिटी से compete कर सकते हैं या नहीं, ना कि मतलब टॉप 4 के लेवल के हैं या नहीं। मेरा मतलब वही पॉइंट ऑफ व्यू था। नहीं तो उसमें तो लेफ्ट बैक तो है नहीं। अगर रॉबर्टसन फुल्ली फिट रहे तो वो तो दुनिया में किसी से भी compete कर ले, बट वो है नहीं अभी फुल्ली फिट और सिमिकास को खिलाते नहीं है, तो दैट लाइक अगेन वी डोंट नो। वैसे सिटी का भी लेफ्ट बैक कौन ही है कैंसेलो जब से गया, Guardiola। वो भी तो नहीं गॉर्डियोला खेलता है प्लस आके खेलता है दे गॉर्डियल ऑलमोस्ट वो अकेले ही जीता गया था लीग लास्ट में। हाँ 3 गोल मारे थे उसे 3 मैच में लगातार। गार्डियोल सेंटर बैक और भी अच्छा है। लेफ्ट लेफ्ट एलसीबी जो खेलता था ना वो बहुत अच्छा खेलता है। आई डोंट थिंक दे स्टिल ऑपरेट विद अ ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक। प्लस नहीं, वो वॉकर चार सेंटर बैक नहीं बट वो क्रोएशिया में भी लेफ्ट बैक ही खेला था, पता नहीं मे बी दे चेंज्ड द डायनामिक उसके और वो लिए। पेल के भी तो क्या था उसे कोई अभी वर्ल्ड कप में ये यूरोस में गॉर्डियोल को तो पेला था किसी ने वो मतलब स्पेन में लामिन यमाल नहीं पेला था शायद। हाँ लमीन यमाल मैं वही बोल रहा हूँ लेफ्ट बैक है नहीं। आई थिंक वो चारों सेंटर बैक खिला रहे हैं अभी। अगर उनके पास प्रॉपर फुल बैक होते ना, जैसे जब वॉकर फिट था या कैंसेलो को उसने कन्वर्ट कर दिया था कि तू जाके मिडफील्ड में खेल, वो वाली चीज आती तो नहीं वो और पर वो तब था कि जब उनके स्ट्राइकर गोल नहीं मार रहा था कि वो फर्स्ट लाइन खेल रहे थे। जब उनके पास स्ट्राइकर है तो मतलब दे कैन हेल्ड अप द लाइन वैसा उस वे में। बट अभी वो लेफ्ट बैक फॉर सम रीजन नहीं खिला रहा है। आई थिंक वो कुकुरेला वाला मूव जब से उनका फॉल मतलब नहीं चला ना, उनको मन तो था लेने का, क्योंकि पेप हमेशा से फुल बैक को लेके काफी स्पेसिफिक रहता है। उसके 50-50 मिलियन के 4 फुल बैक होते हैं, तो उसको लेकर स्पेसिफिक तो रहता है। बट हाँ, लिवरपूल कमिंग बैक आई वुड से कि लेफ्ट बैक इज अ वीक पोजीशन। राइट बैक में नहीं मानता। राइट बैक अगर ट्रेंट रहता है तो इट्स लाइक आवर बेस्ट पोजीशन। हमारा जितना क्रिएशन है वो राइट बैक से ही होता है। हमारा अभी भी मिडफील्ड से क्रिएशन नहीं और होता है। जितने गोल खाते हो वो भी राइट से खाते हो। हाँ बट दैट इज द प्राइस यू पे। मतलब उस जनरेशनल टैलेंट को खिलाओगे तो उसको और कहीं खिला भी नहीं सकता। आई डोंट थिंक ट्रेंट इज अ हाँ मिडफील्डर। ट्रेंट इज नॉट गुड इनफ इन I don't think. मिडफील्ड। हमने इंग्लैंड में देख लिया अभी। राइट पे खिलाना पड़ेगा। The only thing is that like again you have to go specific tactically क्या कर सकते हो। जब हेंडरसन खेलता था और वाइनाल्डम खेलता था तो तब कोई नहीं मार रहा था लेफ्ट साइड से गोल। ट्रेंट का जो मेन मतलब एट्रीब्यूट है स्पैमिंग द क्रॉसेस, वो राइट से ही हो सकता है, वो मिडफील्ड से हो भी नहीं पाएगा। प्रोसेस नहीं है भाई उसका, काफी उसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसके नहीं अलावा मतलब मैंने बोला मेन एट्रीब्यूट, नॉट द ओनली एट्रीब्यूट, मतलब मेन एट्रीब्यूट विच रिजल्ट्स इन डायरेक्ट गोल्स, मतलब वो असिस्ट देता है ना जिसमें उसके जो उसका फर्मिनो को वो देता था उस टाइम जो चेल्सी ने, फर्मिनो ने बहुत गोल खाए हैं ऐसा मेरे को याद है कि ट्रेंट बहुत डीप से मतलब उसने बस स्पैम कर दिया, फर्मिनो आया के मार बहुत दिया। अच्छा करता है। अभी भी जो सिटी वगैरह के अगेंस्ट जो जितने गोल हम मारे हैं सब ट्रेंट का ही क्रिएशन। ट्रेंट जनरेशन टैलेंट है। उसके अलावा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ डी ब्रायन का है। मतलब उस तरह से बॉल और कोई नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा उतने लंबे इसमें, तो ट्रेंट को तो खिलाना ही पड़ेगा। उसको और कहीं नहीं, खिला ये सकता। क्या नहीं ये आई डोंट एग्री विद दिस, आई डोंट क्या? एग्री विद दिस। देयर आर I mean, लॉट्स ऑफ इतने टाइम से मतलब इतने टाइम से मतलब क्या मतलब मैं समझा नहीं हूँ मैं आपका मतलब यू आर कंपेयरिंग डी ब्रुयने वर्सेस ट्रेंट नाउ इन टर्म्स ऑफ पासिंग। एंड ट्रेंट एज अ प्लेयर इन टर्म्स ऑफ उनका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि वो कहीं से बॉल किसी भी कोने में पहुंचा दे पिच के, वो बहुत कम प्लेयर्स करते हैं। और वो दोनों उसका एट्रीब्यूट है, मतलब इसका ये मतलब नहीं है यू वो कैन उस एट्रीब्यूट में वो बहुत ज्यादा अच्छा है और उस वजह से इज अ जनरेशनल टैलेंट। और नहीं पर एक एट्रीब्यूट उसका बहुत खराब भी है जो उसके एक चीजों को ड्रैग करता है चीजों को। हाँ अग्रीड, बट उसको फिक्स करना पड़ेगा आपको। आप उसको
जैसे जब हेंडरसन और वाइनाल्डम खेलते थे तो हम नहीं गोल मतलब पाते थे। I'm saying कि I don't think कि Carlo Ancelotti will play Trent in his right as a right back. नहीं, वो खिला ही नहीं सकता ब्रो। कार्लो Carlo इज वेरी हाँ वेरी कॉशियस मैनेजर। हाँ। मतलब वो ऐसे कभी एक चीज के लिए सैक्रिफाइस नहीं करेगा पूरे टीम को। हाँ टीम को, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि और हो सकता है उसीलिए लिवरपूल हैव लॉस्ट ट्रॉफीज आल्सो बिकॉज ऑफ ट्रेंट, क्योंकि तुम ना। लास्ट नो नो इफ यू सी द लास्ट चैंपियंस लीग फाइनल, वो वाला जो हाँ, जो विनी ने मारा है। जो विनी ने मारा है वो वाला गोल, तो तुम स्ट्रिक्टली ट्रेंट को पता भी नहीं था कि विनी पीछे से आ रहा है। हाँ दैट्स आगे कौन सा राइट बैक खड़ा हो रहा है और वो पास देखा है नो वाल्वर्डे नो को? यार कारवाहाल खड़ा होता है। कारवाल खड़ा होता है, कारवाहाल खड़ा होता है। चलो, देखा कारवाल नहीं उसे same team स्पेन है। में कैसे डिफेंडिंग किया। हाँ लेकिन नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि मतलब ड्रीस जेम्स भी खड़ा होता है और बाकी ये थोड़े और भी हैं तेरे। ये कौन सा राइट बैक है यार उस टीम का? वो पास इतना अच्छा है ना उसका वाल्वर्दे का कि वो गोल तो पड़ना था। मैं मानता हूँ ट्रेंट की वल्नरेबिलिटी है, बट उस नहीं मैच को ट्रेंट हर मैच में वल्नरेबिलिटी है। मित्रोविच आके इस मैच कितने में गोल हमने मार के गया, मित्रोविच के गोल याद है आपको? फुलम ने जो अरे गोल मारे आपके against, वो छोटा मित्रोविच जैसे भर के कैल्वेट गया। लुइन का गोल याद नहीं है इनको, जो एवर्टन ने मारा था। एवर्टन हाँ वो उसमें कौन ट्रेंट था? ऐसे चैट कर रहा था ट्रेंट ऐसे हाँ। लेके। डिफिशियंसी है, बट तू ये नहीं बोल सकता कि उसके वजह से हारते हैं, उसके वजह से नो बट चैंपियंस लीग फाइनल यू लॉस्ट बिकॉज़ क्योंकि ऑफ द प्रॉब्लम इज यू जस्ट हैव टू मेक वन मिस्टेक टू हैव अ गोल। उसके बाद तुम्हारे स्ट्राइकर्स अगर अच्छे नहीं खेले, तुम लोग सीधा मैच हार रहे हो। दैट इज व्हाई हम लोग बोलते हैं कि डिफेंस को पक्का कर ले। लीग के लिए यू शुड हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस। यू कैन नॉट बी Exactly. फुल फ्लाइंग अटैकिंग एंड विन ऑल द गेम्स, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी वन गेम वेयर योर स्ट्राइकर्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट मच एफिशिएंट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई बड़ा प्लेयर होता है जो जनरेशनल टैलेंट है और उसका कोई चीज काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उसके अराउंड चीजें बिल्ड करनी पड़ती है। हाँ। जब रोनाल्डो मैड्रिड में गया था और उसके बाद से वो ड्रिबलिंग उसकी चली गई थी, राइट, बट उसके गोल फिर भी 40-40 आते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा डिजाइन करा कि वो गोल मारे, वो ड्रिबल नहीं भी नहीं, पर करेगा। आपके पास भी हेंडरसन था उसके लिए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि वही मेथोडोलॉजी आपको। इवन डी ब्रायने जो है वो बेल्जियम में क्यों गंदा खेलता है और सिटी में क्यों अच्छा खेलता है? क्योंकि जो सिटी का जो सिस्टम है उसके अराउंड डी ब्रायने को खुद रनर नहीं बनना है। बर्नार्डो सिल्वा जितना भागता है ना भाई, मतलब मैं तो अगर एक प्लेयर बोलो रोड्री के अलावा, तो मैं बोलता हूँ बर्नार्डो सिल्वा अगर इंजर हुआ तो सिटी का सीजन खराब होता है। तो आपको अगर कोई डेफिशिएंसी है बट वो टैलेंट जनरेशनल है तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेंड का ये हमेशा रहेगा, कोई भी मैनेजर हो, अगर वो इतना अच्छा वन ऑन वन डिफेंडर नहीं है और लेफ्ट बैक भी तुम विनीशियस टाइप को ले रहे हो, तो इट विल ऑलवेज बी द केस कि ये होगा। बट प्रॉब्लम इसकी उसको नहीं खिलाने से जो नुकसान है वो हम बेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी जिस तरह की पासिंग है वो बहुत यूनिक एडवांटेज देती है लिवरपूल को, जो मैंने देखा आई थिंक की जो कैटेगरी है वो ब्रूनो की कैटेगरी है। दिनेश अपन जो बात करते हैं ना ब्रूनो की कैटेगरी, मतलब कि Yeah. ब्रूनो के जो पासेस हैं, ब्रूनो भी अच्छे पासेस खेलता है काफी बार। जो उसने कोबी माइनो को खेला था याद है फाइनल में, तो ब्रूनो भी, लेकिन जो उसके टर्नओवर उसकी वजह से होते हैं ब्रूनो के, जो परसेंटेज पासिंग ब्रूनो खेलता है, जो टर्नओवर्स होते हैं, जो तुम फिर कि मतलब तुम्हारा पूरा टीम अटैक पे और एकदम से तुमने पोजीशन लूज कर दी तो यू हैव टू रन बैक अगेन, एवरीवन हैज टू रन बैक अगेन। तो वो Yeah. चीज जो नुकसान है वो ट्रेंट का, वो यू हैव टू अभी मैं बता देता और हूँ। आर्ने स्लॉट, आई I डोंट will नो say- इफ आर्ने स्लॉट एज a coach will want to bear it. Yes, exactly. Right. As a coach, do you want to bear him? I don't think he's going to be playing Jose Mourinho's team. I'm just saying, for example, he's not going to play in Carlos' team. He's not going to play Ancelotti's team. He's not एक ही बंदा going to है। play in Conte's team. कॉन्टे भी He's not going to play in. Ferguson I भी think नहीं Ten खेला। Hag's teams में भी नहीं खेलेगा वो। फर्ग्यूसन भी नहीं खेलाएगा। Ferguson भी नहीं खिलाएगा। वेंगर आई थिंक प्रॉब्ली गिव द चांस। मेरे को वेंगर थोड़ा लगता है जो चांस दे सकता है हाँ, उसे। exactly. नहीं, कॉन्टे और मोरिनो की टीम तो मुझे देखनी भी नहीं है और उसमें वो ना खेले तो ही अच्छा है। बट माय पॉइंट बीइंग कि आई एग्री कि वो वल्नरेबिलिटी तो है, बट द पॉइंट इज कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी मैनेजर रहेगी और समवन हैज टू फिक्स इट। तुम ये नहीं बोल सकते कि अब तुम वन ऑन वन वो डिफेंड भी अच्छा कर ले और ये वाले भी एट्रीब्यूट, जो वन ऑन वन डिफेंडर अच्छा करते हैं दे डोंट इवन हैव द हाफ ऑफ द पासिंग रेंज व्हिच ट्रेंट हैज। तो अगेन इट्स गिव एंड टेक, आपके पास कुछ होगा कुछ नहीं होगा। अभी पॉइंट ये है कि डिफिशिएंसी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा जो आरसीएम है वो ट्रेंड को बिल्कुल अच्छे से ट्रैक नहीं कर अगर तुम्हारे पास स्टीवन जेरार्ड अभी खेल रहा हो, अगर तुम्हारे पास स्टीवन जेरार्ड अभी इस जनरेशन में इस टीम में स्टीवन जेरार्ड खेल रहा है, so will you play Steven Gerrard, or I mean will you rate in terms of passing, right, in terms of the जो switches ability जो आप बोल रहे हो, आप जेरार्ड को खिलाओगे या ट्रेंट को खिलाओगे? In terms, just in terms of that attribute, do you want individual attributes? पास कर रहा है ना, उसको तो उतना स्पेस नहीं मिल रहा जितना ट्रेंट को मिलता है। इफ यू आर अ डिफेंडर, ट्रेंट मिडफील्ड में इसीलिए तो खेल नहीं सकता क्योंकि उसके पास मतलब वो कंट्रोलिंग एबिलिटी नहीं है जो मिडफील्ड वाले में होनी जो चाहिए कि passes तुम्हारा play इधर कर से भी बॉल आ रहा है इधर से बॉल। ट्रेंट का जेरार्ड- भी पूरा फील्ड है ना। वेरी वन ऑफ एग्जांपल, जेरार्ड से ज्यादा अच्छे पासर मैंने वर्ल्ड फुटबॉल में ही बहुत कम देखे हैं, तो मतलब मैं क्या बोलूं, उसका मैं कंपेयर नहीं कर सकता। प्लस द गुड थिंग इज कि यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस व्हेन यू आर अ डिफेंडर टू पास।
आपके पास टाइम ज्यादा होता है, बट उसमें ये नुकसान ये होता है कि आप पीछे से पास कर रहे हो तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ट्रेंट का ये है कि वो भाई अगर वो हवा में भी पैर मार देना, जैसे डी ब्रायने भी मारता है कोई कोई, वो बॉल तुम्हारे पैर में आके गिरती है, और वो उसका रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में बहुत कम है। तो मेरे को लगता है कि मतलब उसको तो खिलाना ही पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड वेज जिसमें उसका डिफिशियंसी जो डिफेंस को लेके है वो उतना एक्सपोज नहीं हो। और हमारा जो आरसीएम है वो थोड़ा सा, जैसे हेंडरसन रहता था वो पूरा मैच ही खेल लेता था राइट बैक, उसको फर्क ही नहीं पड़ता था वो एस्थेटिकली कितना अच्छा दिख रहा है कितना गंदा दिख रहा है, वो खेल लेता था ट्रेंट को आगे खिला के। तो अभी आई थिंक लिवरपूल फैंस रेट हिम आल्सो। मतलब मैं बताता हूँ ना, देख मतलब यू गाइस विल नॉट मिस हिम इफ अनदर क्रिएटर हैज कम। मतलब एक बहुत अच्छा जो आपने जो मिडफील्डर बोला ना, एग्जैक्टली तुम क्रिएटर मिडफील्ड में लाओ और प्रॉपर राइट बैक। राइट बैक हैज नेवर बीन द पोजीशन दैट कैन कंट्रोल गेम्स। राइट Yeah. बैक कभी भी वो पोजीशन है नहीं। मतलब ही कैन नॉट कंट्रोल गेम्स, ही कैन नॉट डिक्टेट गेम्स, ही इज जस्ट another player, मतलब who is okay, who is one of in the important side, but I will say who is the midfield होना चाहिए सबसे अच्छा, and you guys will not miss him if you have a proper midfield, because तुम लोग को वो compensate करते हो। अगर तुम्हारे पास लुइस डियाज नहीं है, मोहम्मद सलाह, जो रनर्स नहीं है ना, वो तुम तभी भी नहीं कर सकते उससे कुछ, बिकॉज यू नीड समवन टू गो बियॉन्ड द लाइन। वो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, और पहले भी वैसे ही थे। माने भागता था कुत्ते की तरह और साला भागता था कुत्ते की तरह, ही हैज टू बी, उसके पास इतने चैनल पासेस थे उसको फ्री होने के लिए, और फर्मिनो लाइन में पासेस देता था कि वो टैग था, वो क्यूट पासेस प्ले कर सके, कि फर्मिनो के पास वो टेक्निक थी वो क्यूट पासेस वाली। अभी वो क्यूट टेक्निक किसी के पास नहीं है लिवरपूल में, कि मतलब जो सलाह को जो वो बैक हील पासेस देता था ना, कि सलाह एकदम से फ्री हो गया कि उसके पास फिनिश करना है, माने एकदम से फ्री हो गया। आई थिंक मैकलेस्टर के पास है ना, नहीं इतनी वो मतलब बॉल मैनिपुलेशन नहीं है मैकलिस्टर का, पासेस ही कुड प्ले, पर लेकिन वो बॉल मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा इतने मतलब छोटे स्पेस में। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अरे इनके गेम हमेशा मिडफील्ड से क्रिएट नहीं होता है, इनके गेम हमेशा विंग से क्रिएट होता है। या वो क्योंकि वो वही मतलब हमारा गेम ही वही है कि ट्रेंड पास करो और फिर होप फॉर द बेस्ट। हम जितने खराब खेल रहे हैं वो इसी वजह से ही खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे मिडफील्ड से वो नहीं होता रहा। बट मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि मिडफील्ड में अगर होता तो हमारे पास, हम ट्रेंड को मिस नहीं करते, बिकॉज वो एक हम इकलौती टीम है जो ऐसा खेलते हैं, जो राइट बैक ऐसे खेल रहा होता है ना, तो वो एक यूनिक एडवांटेज भी है बहुत जगह पे, क्योंकि वो कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ फुटबॉल है नहीं। तो अगर उसकी डिफेंसिव के मतलब डिफिशिएंसी को आप कवर कर दो तो आप कहीं से भी गोल खा लोगे, वो राइट बैक से इतना बना के देता है। तो आई थिंक क्लॉप के टाइम में थोड़ा ये होता भी था। तो आई वुड स्टिल से कि मतलब वो साइड पे मैं उतना कंसर्न नहीं हूँ अगर ट्रेंड रहता है तो, क्योंकि हमारा अगर हम आउटस्कोर करते हैं तो वो भी इट्स नॉट अ बैड पोजीशन टू बी। अगर मतलब ब्रो लेट्स प्ले गेम, मतलब एक छोटा कि कीप लोन सेल, कि मैं आपको जल्दी से स्क्वाड के नाम लूंगा, यू जस्ट से कि कीप का मतलब रखना है उसको, बेच मतलब लोन पे भेज दो, मतलब जैसे यंगस्टर्स है जो, या फिर मतलब भेज दो, मतलब ही इज नॉट गुड एनफ फॉर लिवरपूल नाउ। तो गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं हम। पहला है बेकर, एलिसन बेकर। कीप But I will say there are rumors that he can leave. He could leave. He can go to Saudi Arab, अब वो और कहीं नहीं जाएगा, बट और एक दो साल बाद जाएगा। पर उसका एक वो भी बाकी है ना, मतलब दैट एक ही साल बाकी है ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो। साला जैसे ही तो है। तो मतलब नेक्स्ट सीजन यू विल बी इन बिग ट्रबल ब्रो, कि अगर साला और एलिसन बेकर अगर निकल गए तो तुम्हारे पास पैसे कौन देगा? नहीं वही सेम चीज, पैसे भी नहीं आए तुम्हारे, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कर गए। जैसे मानने की कम से कम 35 मिलियन तो आए थे, है ना, लेकिन वो रन डाउन कर गए, और तुम्हारा खरीदना भी पड़ेगा उनके रिप्लेसमेंट। आई एग्री आई थिंक उसको साइन कराना ही पड़ेगा इन लोगों को। आई थिंक दैट्स द नंबर 1 गोल। एक और है मार्सेलो पिटालुगा कीपर। यार उसको देखा नहीं हमने, पता है वो काफी महंगा था, वो 16 साल के लड़के पे एक 1.5 मिलियन दिया था इन्होंने ब्राजील में। उसको देखा ही नहीं हमने कीपिंग करते, वो लोन पे रहा है, तो उस पे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। बट हाँ ये बोलूंगा कि अगर केलेहर जा रहा है तो ही कैन बी आवर नंबर 2 कीपर, सो दैट वी कैन सी कि कैसा करता है वो। मतलब तीसरा है केलेहर यार अगर होता तो मैं कीप करता, वो बहुत अच्छा नंबर 2 था। काफी सिटी का नंबर 2 है ना वो क्या, ऑर्टोगा ही नाम है ना उसका, वो भी अच्छा है काफी। जो हगा था गोल के लिए। हाँ उसने यूरोस का बेकार गया था शायद। नहीं वो तो अब लग रहा है कि अच्छा, क्योंकि लास्ट सीजन उसने ठीक खेल दिया, बट केलेगर ने काफी अच्छा खेला है जब एलिसन नहीं भी था। वो नहीं उसे चेल्सी के अगेंस्ट जो ट्रॉफी जीते वो केलेगर ने जिताई है, आई रिमेंबर दैट। काफी अच्छा था, बहुत अच्छा नंबर 2 था वो। लेट्स मूव टू डिफेंस। जो गोमेज हमारे पास कितने हैं? कोनाटे है, वन डाइक है और गोमेज है, यही तीन। नहीं ऐसे नहीं सोचना है। जो एज अ प्लेयर आई एम सेइंग कि उसके बाद यू विल फिल आउट द डेफिशिएंसीज। अभी तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से टू विन द लीग और टू चैलेंज द लीग ही इज गुड एनफ फॉर नॉट टू। I will keep Gomez as a 4th choice center back and he can play left back, right back also. Left back काफी अच्छा खेला था वो last season, तो
ठीक है, वर्जिल वैन डाइक, ऑब्वियसली कीप यार, 1-2 साल तो रहेगा अभी। कोनाटे, कोनाटे भी कीप ओके, सिमिकास, यार। सिमिकास प्रोबब्ली सेल, आई वुड से। अच्छा इसके लिए sell। हमारे लिए भी अच्छा है। तो मतलब एंडी रॉबर्टसन, एंडी रॉबर्टसन कीप, अज्यूमिंग ही इज फिट, लाइक कीप। रीस विलियम्स, रीस विलियम, अच्छा वो तो बच्चा है यार, लोन। नेथन फिलिप्स, वो तो सेल है, वो तो जा ही रहा है वैसे भी। अच्छा जा रहा है क्या? ट्रेंट, ट्रेंट कीप ऑब्वियसली। वेंडरबर्ग, सेल, चल अच्छा नहीं है, साइनिंग नहीं था क्या ये? नहीं बहुत अच्छा साइन था, पैसे अच्छे मिलेंगे उसके लिए। उसको 4 साल से लोन करा रहे हैं, सारे डच अच्छा। क्लब्स उसको खरीदना चाह रहे हैं, पैसे अच्छे मिलेंगे। कौनसा कौन सा? कौनसा जैरल कौनसा? वो जैरेड कौन सा की लोन। जनरेशन टैलेंट इनका अगला। हाँ इनका जनरेशन टैलेंट को तुम ब्रो लोन, हाँ, आई सा वो थिंक यू भूल ही कुड गए। बी थर्ड चॉइस सेंटर बैक नहीं है तुम्हारा वो? फोर्थ सुना। था, बट मुझे लगता है कि हम एक सेंटर बैक खरीदने वाले हैं तो 5 हो जाएंगे, तो उसमें शायद वो कम खेल पाए। मुझे लगता है अगर वो एक सीजन चल गया ना किसी अच्छे प्रीमियर लीग क्लब में, तो उसको हमेशा के लिए खिला सकते हैं। मतलब आगे इज वेरी गुड। कॉनर ब्रैडली, ऑब्वियसली कीप भाई। तो मतलब अभी तुम्हारा राइट बैक सॉर्टेड है, ट्रेंट ब्रैडली, सेंटर बैक तीनों सॉर्टेड, दोनों सॉर्टेड है, चार दोनों से दो जाएंगे, एक चाहिए। हाँ मतलब एक साइन करना पड़ेगा। लेफ्ट बैक आल्सो यू हैव टू साइन देन, क्योंकि यू आर जस्ट कीपिंग एक रॉबर्टसन। रॉबर्टसन एंड आई वुड मेक हिम डेप्यूटाइज। आई विल कीप मैं स्टार्ट करने वाला लेफ्ट बैक खरीदूंगा। अच्छा स्टार्टिंग 11 वाला यूनियन लेफ्ट बंद, हाँ, और स्टार्टिंग 11 का ही सेंटर बैक भी चाहिए तुम्हें, बिकॉज यू कांट ट्रस्ट कोनाटे। यस, और एलसीबी चाहिए, एलसीबी जो लेफ्ट फुटेड हो। ओके, तो अभी तुम कोलविल के भी पीछे थे लास्ट सीजन, आई रिमेंबर। हाँ कॉलवेल और एग्जैक्टली। चालो इग्नासियो, दो है। हाँ इनासियो भी खेला तो नहीं, वो उसको यूरोज में देख नहीं पाया कि अब स्पोर्टिंग लीग को तो देखता नहीं है, मतलब पोर्चुगीज लीग तो कोई देखता नहीं, तो अब सर यूरोज में ही देख पाएंगे इनासियो को, पर खेला ही नहीं, वो एक भी मैच नहीं खेला ना वो। हाँ एक भी मैच नहीं खेला। तो लेट्स मूव टू मिडफील्डर्स देन। ये मजा, यहाँ मजा आएगा मिडफील्डर्स में। एंडो कीप एज अ डेप्यूटी 6, 260 होते हैं। डेप्यूटी बहुत अच्छा है, वो डेप्यूटी ही है वो। बोजो सोबो कीप आराम से। हाँ, तो यू वांट टू, ठीक है, और डिप्टी भी नहीं, स्टार्टिंग यू आर कीपिंग हिम। हाँ सोबो कैन स्टार्ट अगर हमारे पास 6 तगड़ा हो। अच्छा ठीक है, मैकलिस्टर तो स्टार्टिंग है भाई किसी भी team में। कर्टिस जोन्स, सेल सेल सीरियसली भाई, वो कहीं नहीं जा रहा, आई वांट टू डिस्कस दिस ब्रो, सीरियसली कर्टिस जोन्स सेल। मतलब भाई उसको वो- तो मैं ये मतलब जो ये मतलब इस परफेक्ट सिस्टम प्लेयर है यार वो तुम्हारे, वो परफेक्ट सिस्टम है, मतलब वो गैप्स को फिल करने वाला प्लेयर है वो तुम्हारे लिए। मतलब मशीन, भाई, कौन ये- ना मशीन ये कोई ऐसा। स्किल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से उसने नहीं काफी। पर तुम्हारे जो एक सेकंड, जब आप रिप्लाई दो उससे पहले, कि तुम्हारे जो ये एनफील्ड एजेंडा और ये सब जो चैनल्स है ना, रेडमैन टीवी और ये सब, ये तो बहुत हाईली रेट करते हैं इनको, कर्टिस जोन्स को। मेरे को भी डिसेंट प्लेयर लगता है कि मतलब ये वेस्ट हैम के लिए ठीक है, मेरे को वैसे लगता है कि नॉट गुड इनफ फॉर अ लो। भाई उनके सिस्टम में के लिए वो बंदा परफेक्ट है यार, ड्रिबलर है ना ब्रो, ही कैन बी हाँ मतलब, लेकिन वो ड्राइव और नहीं करता बॉल के साथ तुम्हारे में। प्रॉब्लम क्या था ना कि वो 8 खेल रहा था, और 8 पे खेल के अगर तुम ना गोल करो ना असिस्ट करो, सिर्फ रनिंग करो, और वो बहुत स्लो करता है गेम को। जैसे कि उसका एक वीडियो, मतलब इसलिए उसको लाते हैं, कंट्रोल करता है वो गेम को कभी कभी यार, बट वो 3 टच लेता है एक पास करने से पहले। तो इफ यू आर अ फास्ट ट्रांजिशन टीम देन ही इज अ लायबिलिटी। उसका ये अच्छा है कि वो बॉल कीप कर सकता है, तो दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक यूज केस। अगर आपको बेंच से चाहिए, आप लीड कर रहे हो और आपको कीप करना है बॉल, देन ही इज गुड। बट एज अ स्टार्टर ना गोल करेगा ना असिस्ट करेगा और 3 टच लेगा हर पास करने के लिए, आई वुड सेल हिम। हाउ मच डू यू थिंक यू वुड गेट फॉर हिम? 20-25 मिलियन और क्या। हाँ मेरे को भी ये लगता है इतना ही मिलेगा। हार्वी एलियट, आई विल कीप भाई एकदम, बट बेंच से, नॉट अ स्टार्टर, बेंच से। बेजेटिच, बजट इज कीप, बजट इज अच्छा लगता है। ठीक है, और लास्ट है ग्रेवन बर्च। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस गाय। चल बस वो आया गया पता ही नहीं चला। उसका बायर्न का सीजन देखा है ना मैंने, बायर्न में भी खराब खेला वो, एजेक्स में भी वो डिसेंट ही खेलता था, उसको हाइप किया हुआ था कि वो काफी अच्छा है। नेदरलैंड्स में खेला भी नहीं। नेदरलैंड्स में उसको कौन खेलता, वो रैंडियर और वो शौतान वतन कौन से खेल रहे थे ब्रो उसकी। मैं सोचा कि ग्रेवन बर्च को क्यों नहीं खिला रहे हैं, इज स्टार्टिंग 11 इन लिवरपूल साइड। भाई वाइन एडम आया, पता है सेकंड हाफ में वाइन एडम आया, वो नहीं आया। हाँ वो नहीं आया। उसका उल्टा है कर्टिस जोन्स से, उसका सिर्फ गोल और मतलब शॉट अच्छा है गोल पे। बाकी उससे बॉल छीन लेते हैं वो। पिछले सीजन उसने अच्छा था ना लिवरपूल में, थोड़ा बहुत तो
मतलब लिवरपूल का सीजन पिछले वाला उसने ही बस परफॉर्म शोल्डर ड्रॉप करके वो एक दो जगह निकल Decent. जाता है, मतलब वो थोड़ी एट्रीब्यूट थोड़ा उसका डिसेंट सेकंड है। हाफ थोड़ा ठीक खेला, बट ही वाज नॉट लाइक ही वाज नेवर इन्फ्लुएंसिंग गेम। यूरोपा में तो डिसेंट खेला था शायद, 2-3 गोल मारा था ना उसने। हाँ, बट अगेन ही कैन नॉट इन्फ्लुएंस गेम्स एज अ मिडफील्डर इज द हाँ, प्रॉब्लम। वो तो तो अगर अब अभी तुम्हारा मिडफील्ड देखें हम तो मतलब यू हैव 2 नंबर 6s एज अ डिप्टी, ये बेजेटिच और ये हाँ, बट आई नीड वन बिग सिक्स। तो एक तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, फिर आगे खेल कैसिडो टाइप, मतलब एक बढ़िया हाँ। मार्किंग नंबर 6 चाहिए, हाँ। जैसे वो सुबिमेंडी है ना वो हाँ। सोसेडाड। लाविया वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर यू अगर तुम लास्ट सीजन आई डोंट एग्री। आई डिडंट 19 साल का था, हमको प्रॉपर फैबिनियो टाइप चाहिए जो 20-25 साल का हो, कुछ लेके आ रहा हो और उसके अगली मतलब पलीनिया, दे नीडेड पालिनिया older, like he was 28-29. I'm saying कि जैसे जुबिमेंडी है ना, या वो उगाटे था ना, मैनुअल उगाटे। पर उगाटे इज नॉट गुड ऑन द बॉल ब्रो। मैं देखा है उसको, एक दो मैच उसके देखे हैं मैंने उरुग्वे वाले। अभी ऐसे He- United मतलब डिसेंट है भाई, वो डिसेंट है। नहीं डिसेंट भी नहीं है ब्रो, प्रीमियर लीग में टाइम नहीं है ना, तुम्हें इंटरनेशनल मैचेस में टाइम मिल जाता है। मैं बोल रहा हूँ प्रीमियर लीग में तुम सोचो कि तुम्हें 1 सेकंड पहले तुम्हें और ये काम करना है, एक ज्यादा बोल दिया, मतलब 0.5 सेकंड्स तुम्हें जो तुम अभी कर रहे हो ना, तुम्हें 0.5 सेकंड फास्टर करना है वो चीज। तो वो उगाटे नहीं है ब्रो, वो बॉल मैनिपुलेशन स्किल्स नहीं है उसकी। बट अभी 6 का भी मार्केट वैसा कहाँ ही है यार, कितने 6 हैं अच्छे, तो वो भी थोड़ा ठीक ठाक प्रॉब्लम है। पालिने एक अच्छा, पालिने बायन चला गया। या बैन 29 साल का था वो नहीं आता भाई। नहीं पर 32-33 तक वो खेल सकता है वैसा। नहीं, मेरे को लगता है जुबिमेंडी बेस्ट है, वो एज प्रोफाइल भी अच्छी थी उसकी, 24-25 का था, और हाँ। अभी जुबिमेंडी काफी अच्छा था। तो मतलब मेरा पॉइंट है कि नंबर 6 स्टार्टर चाहिए। और तुम्हें आगे फिर तुम्हारे जो 2 नंबर 8s हैं अगर तुम कंसीडर करो तो वो मैकैलिस्टर एंड सोबोजो, और उनका बैकअप है एलियट और ये तुम्हारा एक और बेजिटिच। हाँ, तो तुम्हें एक मिडफील्डर और चाहिए फिर तुम्हें, मेरे हिसाब से एक 8 भी चाहिए, बट एक 8 भी चाहिए। you have to be a starter is what I'm saying। हाँ। बट वो 8 तभी आएगा जब ग्रेवन, बट 8 तुम स्टार्टर इसलिए नहीं बोल रहे हो बिकॉज़ यू ट्रस्टिंग सोबोसलाई। आई डोंट ट्रस्ट सोबोसलाई। दिनेश, यू ट्रस्ट सोबोसलाई? मतलब he is an okayish player है, मतलब he's not going to give you the points which you need always। भाई ओडेगार्ड okayish बंदा है वो। ओकेश प्लेयर देखता था। ओडेगार्ड 2 साल पहले कुछ नहीं करता था, बट he improved as an 8 first and then नहीं, पर ओडेगार्ड के एट्रीब्यूट्स यू सी, ओडेगार्ड के तुम्हें एट्रीब्यूट्स दिखते थे कि ही इज अ गुड बॉल मैनिपुलेटर। नहीं, आपने क्या बोला? ओडेगार्ड कुछ नहीं करता, क्या बोला? 2-3 साल पहले ओडेगार्ड भी मेरे को ऐसा ही लगता था, सोबोसलाई अच्छा, तो मतलब सोबोसलाई के पास 2-3 साल टाइम है, राइट? 2-3 साल टाइम है सोबोसलाई के पास। नहीं, 1 साल तो है। सोबोसलाई ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, वो लेप्जिग के लिए बहुत अच्छा खेलता था। लेकिन जो इफ यू सी द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सोबोसलाई की व्हाट डज बेसिक एट्रीब्यूट्स दैट ही हैव, उसके पास शॉट है, आई एग्री, उसका जो शॉट टेक्निक है वो बहुत अच्छा है। He runs the most in the team। नहीं, ऑन द बॉल उसके पास पासिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसका बॉल मैनिपुलेशन इतना अच्छा नहीं है, एंड ही इज नॉट अ कंट्रोलर टाइप ऑफ अ गाय, ठीक है। उसके पास बॉल आएगी तो मतलब वो भर देगा, वैसा वाला है। उसकी पासिंग इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पासिंग अच्छी नहीं है, बट ड्रिबल करता है वो। उसको ड्रिबल नहीं बोलेंगे, उसको लेके भागना बोलेंगे, जो बेलिंगम करता है। बेलिंगम भी ड्रिबल नहीं करता है, बेलिंगम भी भागता है लेके, वैसा वाला। तो ड्रिबल और वैसा ड्राइव अलग है, वैसा उस वे में। तो आई डोंट थिंक, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब यू कांट ट्रस्ट हिम एज योर नंबर 8 स्टार्टर। यू नीड टू हैव अ गुड 2 मिडफील्डर्स नाउ। I trust Soboslai, और मैं खरीदूंगा एक 8 अगर ग्रेवनबर्च बिका तो। I mean, that's the reality। I would want कि ग्रेवनबर्च बिके एंड कोई आए, but that's the reality कि ग्रेवनबर्च गया तो इनको आना चाहिए। लेट्स मूव टू फॉरवर्ड। सबसे पहला मतलब इसके बारे में तो बहुत बात हो रही है, कोलंबियन गाय लुइस डियाज। I will sell। You will sell? दिनेश तो अच्छा है, मतलब he wants some money in, right? कोई तो पैसा कोई तो देगा। I think देखो मैं बताता हूँ क्यों। हमारे जो तीन जो खेलते हैं ना, उसमें से जैसे कि माने एक्चुअली पता है लिवरपूल में 1.5 साल से खराब खेल रहा था, वो काफी खराब खेल रहा था, बट उसकी एक चीज थी कि अगर वो पेस नहीं है, ड्रिबल नहीं है, वो उसको अगर फिनिशिंग मिली ना, वो फिनिश करता 100/100। ही वाज अ बेटर फिनिशर देन साला। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है ना, नूनेस फिनिश नहीं कर पाता, गैप को फिनिश करता है बट वो क्रिएट नहीं कर पाता। साला का वही 50-50 चलता है फिनिश का हमेशा से, जब वो अच्छा खेल रहा था तब भी। तो यू नीड अ लेफ्ट विंगर हु फिनिशेस आल्सो गोल। डियाज कैन नॉट फिनिश, दैट्स द प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्टर्लिंग टाइप है, वो क्रिएट करेगा। हाँ, आई वुड सेल एंड आई वुड गेट अ लेफ्ट विंगर लाइक एंथनी गॉर्डन या उस टाइप का कोई। यू रेट एंथनी गॉर्डन? आई रेट एंथनी गॉर्डन। हाँ, वो थोड़ा एवर्टन का है तो थोड़ा सा इशू हो सकता है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को भी वही लगता है कि मतलब ही इज अ किक एंड रनर, मतलब जो ये नहीं, एंथनी गॉर्डन इज अ डिसेंट प्लेयर ब्रो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं आई विल पुट इन द कैटेगरी ऑफ मार्टिनेली, मुड्रिक, जो किक एंड रन वाले प्लेयर हैं। नहीं, मुड्रिक को तो तू डाल ही नहीं सकता। मुड्रिक को कहां से ला रहा है भाई? मतलब किक एंड रन, वो यूक्रेन का खेला है,
उसको यूक्रेन में खिलाया नहीं। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा कि हाउ वेल दे आर एज ए प्लेयर, मैं बोल रहा हूँ कि गॉर्डन उनका बेसिक एट्रीब्यूट है वो किक एंड रन ही है और वैसा। पहला बात तो ये है कि मार्टिनेली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मार्टिनेली टाइप का ही प्लेयर चाहिए जो गोल मारे। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक मतलब एंथनी गॉर्डन इतना गंदा नहीं है जितना तू बोल रहा है। किक एंड रन, मतलब But- व्हाट यू वांट but एवरीवन टू ड्रिबल गंदा- परफेक्टली लाइक मेसी, हजार्ड एंड और दीस गोल भी गाइस। मारे। भाई उनको आउटपुट भी चाहिए, लोगों को किक एंड रन से आउटपुट हो जाए तो भाई उनको वही चाहिए ना। लिवरपूल आर बेसिकली मिसिंग क्रिटिकल चांसेस। कितने सारे उन्होंने क्लियर कट चांसेस बनाए, नहीं पर but कोई नहीं उनके दे पास पाया। नहीं पर उनके पास किक एंड रन वाला प्लेयर है ऑलरेडी। मैं बोल कौन रहा हूँ है? यू कैन हैव वन इन द टीम, वो नूनेस। नूनेस स्ट्राइकर है बे, स्ट्राइकर नहीं वो स्ट्राइकर खेलता ही नहीं है, पर वो स्ट्राइकर नहीं, खेलता नहीं है। नहीं नहीं, वो कभी left स्ट्राइकर में रहता है, कभी वहां रहता है, मतलब नहीं बेस्ड ऑन द टीम। नहीं नहीं वो लेफ्ट विंग खेलता है। वो कितना नहीं, ये गैप को striker- वो striker गैप को वो स्ट्राइकर खिला रहा था जब लुइस डियाज starting में। खेलता है They तब always कहाँ खेलता है? नूनेस डियाज कभी खेलते ही नहीं है साथ में, मोस्टली स्टार्ट ही नहीं करते ना वो दोनों एक साथ। जब डियाज खेल इंजरी की जब वजह से देखो मैं बताता हूँ। डियाज का बोल रहा हूँ, नूनेस, गैप्को और जोटा तीनों लेफ्ट विंग और स्ट्राइकर दोनों खेलते हैं। डियाज हैज द थिंग कि वो प्रॉपर विंगर है, नूनेस प्रॉपर विंगर नहीं है। आई थिंक कि हमको प्रॉपर विंगर चाहिए बट जो जिसका फिनिशिंग थोड़ा बेटर हो इन केस द अदर्स आर मिसिंग। अब जैसे जोटा का फिनिशिंग अच्छा है बट उसका फिनिशिंग बाकी और कुछ नहीं है। इन बॉक्स ड्रिबलिंग अच्छा है काफी उसका। इन भाई मैं बताता हूँ, पता है डार्विन न्यूनेस shoulder को जोटा drop- को खिलाओगे ना, यू विल हैव मोर गोल्स। नहीं बट नहीं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। अगर जोटा खेलता है ना, देखना कभी वो जो स्टार्ट करता है तो वो गोल बॉक्स के अंदर ही कुछ भी कर पाता है। नूनेस क्या है कि वो बाहर से भी काफी कुछ कर रहा होता है, वो कैओटिक है थोड़ा। तो मेरा पॉइंट ये है, कमिंग ऑन डियाज, आई वुड सेल एंड आई वुड गेट लाइक अ राफेल लियाओ या एंथनी गॉर्डन। राफेल लियाओ को तो आपने बहुत फेल है, वो यूरोस में उसने कुछ भी नहीं किया ये। आउटपुट नहीं है उसका भी, सेम वो प्रॉब्लम भी है। उसका भी आउटपुट नहीं है ब्रो, वो भी ऐसा ही वो है कि वो मतलब वो डियाज ही बट है। वो लीग में चल जाएगा पाल, मैंने वही बोला था ना, I लीग में don't वो know, बंदा I चल don't- जाएगा। पर वो नीको प्रीमियर लीग थोड़ी विलियम्स के बारे फास्टर में है, प्रीमियर लीग थोड़ी फास्टर है। मैं ये बोल रहा हूँ प्रीमियर लीग वो इटली में चलता है जो थोड़ी स्लो हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रीमियर लीग में थोड़ा सा तुम्हें यंग प्लेयर पे तू ऐसा फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। हो सकता है अच्छा खेल ले, साला को भी बोलते थे कि इटली की लीग स्लो है ना, नहीं कर पाएगा। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। मेरा पॉइंट ये है कि आई नो कि डियाज कैन नॉट फिनिश एंड आई नो अदर्स कैन फिनिश। वेदर दे कैन फिनिश इन प्रीमियर लीग और नॉट, विल डिस्कवर लेटर। मेरे को एक फिनिशर चाहिए, लियाओ फिनिशर है, एंथनी गॉर्डन फिनिशर, इवन निको विलियम्स अच्छा था बट अब तो वो बार्सिलोना चला जाएगा। तो निको विलियम्स अच्छा फिनिशर है ऐसा। बट वो भी तू बोल सकता है कि वो अभी स्लो लीग में खेल रहा है, कैसा करेगा। सेम चीज है। अब उसको जज नहीं कर सकते इंटरनेशनल के बेसिस पे अभी। काफी अच्छा खेला था न्यूकासल के लिए, मेरे को अच्छा लगता है गॉर्डन। मेरे को लगता है अगर साउथगेट भी गॉर्डन को खिलाता था ना अच्छा तो बेटर ही होता था। हाँ वो तो हमने भी डिस्कस किया। सेकंड है डार्विन न्यूनेस। आई विल कीप, क्योंकि बेचोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और प्लस ही ऑफर समथिंग व्हिच अदर्स डोंट। तो उस पे इतना इन्वेस्ट कर दिया है अभी, तो उसको रखो। मोसला, वो तो चलो obviously- मोसला को लास्ट में एक बार डिस्कस करते हैं उसका हाँ। सिचुएशन। कोडी गैप को कीप उसका बहुत अच्छा गया इंटरनेशनल। जोटा, जोटा भी कीप। फेबियो कार्वालियो भी करवा लियो सेल। सेल ठीक है। वो शायद जा भी रहा है, लोन पे जा भी रहा है या सेल जा भी रहा है। अभी मैंने आज ही देखा था शायद वो जा रहा है। ही बिलीव्स ही इज अ 10, स्लॉट बिलीव्स ही इज अ विंगर। और लास्ट है बेंडोक देखा है मैंने। बेंडो भी जा रहा है। बेंडो आई वुड लोन, आई विल नॉट सेल। वो काफी अच्छा हाँ तो लेट्स डिस्कस अबाउट एलिफेंट इन द रूम नाउ। मतलब सबसे बड़ा प्रीमियर लीग लेजेंड मो सलाह कि ब्रो, मो सलाह का व्हाट वुड यू डू। मतलब मेरे से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि वुड यू रादर गेट 100 मिलियन ऑफ हिम नाउ और वुड यू एंड सेल हिम एंड और सेकंड ऑप्शन है कि मतलब you will get the season out of him this season, he doesn't sign a new contract and let him leave on a free। क्योंकि मेरे हिसाब से लिवरपूल फैंस आर होपफुल किया ना मोहम्मद सलाह will sign a extension kind of a thing कि they are hopeful। क्योंकि मैं रेडमैन टीवी पर ये सब भी ऐसा ही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसे फ्री में कैसे जा सकता है, हमने तो उसको डेवलप किया है, हमने उसको इतना वॉइस दिया, पूरा इतना बड़ा बनाया है, तो ऐसे फ्री में कैसे जा सकता है, तो एक्सटेंशन साइन करके ही जाएगा। पर आई डोंट थिंक सो ही इज गोना साइन एक्सटेंशन। मेरे को नहीं लगता कि वो मेरे को लगता कि जो सऊदी जाने वाले हैं ना, क्योंकि सऊदी ने आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, सऊदी डजंट स्पेंड ऑन ट्रांसफर्स मच। क्योंकि 2-3 ही है उन्होंने जो किए। एक तो फैबिनो को 40 मिलियन दिए थे, अभी ये विला का जो प्लेयर जा रहा है ना, सुपरस्टार्स के लिए वो लोग करते हैं बट वो ज्यादातर एक्चुअली उनके पास एक प्लान होता है। वो भी फ्री जाते हैं, उनको पैसे ज्यादा देते हैं। जैसे कांटे को उन्होंने पैसे दिए ज्यादा, रोनाल्डो को पैसे दिए, सब लिए फ्री है, बेंजेमा को पैसे दिए, सब फ्री है, सबके सब फ्री है। बस उन्होंने 2 को दिए, फैबिनो को उन्होंने पैसे दिए अच्छे। चेल्सी के पीछे सारे प्लेयर्स गए, उन्होंने 15 मिलियन 18 मिलियन 20 मिलियन ऐसे दिया है। एक उन्होंने एस्टन विला का भी जस्ट किया ना, वो विंगर कौन है, राइट विंगर, क्या नाम था उसका यार? हाँ जिसने अभी गोल मारे थे इसके अगेंस्ट, जो डियाबी। डियाबी, हाँ डियाबी
वो भी चला गया ना वेस्टर्न विला, तो वेस्टर्न विला सॉरी सऊदी पैसे नहीं देता है, तो सऊदी इज आल्सो वेटिंग कि सलाह आ जाए, और सलाह पूरा मतलब आप जानते ही हो कि अरब वर्ल्ड में वो उसका पार्ट है, ही इज अ मुस्लिम I think that's the only reason they will pay बेस्ट Salah. तो मैं वो बोल रहा हूँ कि बेस्ट मुस्लिम एथलीट है, मतलब प्रॉपर्ली वो वर्ल्ड का उसमें में, तो एंड वो कल्चर भी पूरा मुस्लिम है वहां पे सऊदी में। तो मेरा वो है कि सलाह ने शायद पहले, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सलाह ने पहले डील कर रखा है उस समय कि आई विल कम टू ऑन फ्री, कि मेरे को तुम 200 मिलियन दे देना साल के, तो और आई विल कम टू ऑन फ्री कि तुम पैसे नहीं दोगे। तो आई एम थिंकिंग कि सलाह डजंट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो व्हाट विल यू डू, व्हाट्स योर ऑप्शन, मैं बस ये बता। I would have sold Salah this season, but the problem is कि मेरे को कोई दिखता ही नहीं है इतना अच्छा राइट विंगर जिसको हम उससे रिप्लेस कर सकें। राइट विंगर का मतलब है जो लेफ्ट फीट से खेले। ब्रो आई थिंक यू कुड हैव गॉन फॉर ओलिसे, हाँ, ओलिसे यू कुड हैव गॉन फॉर। I don't rate Olise that high. वो उस आई थिंक ही वाज द बेस्ट। नहीं वो मतलब वो भी टैलेंट है, यू कांट मतलब वो पहले सीजन से यू कांट सी दैट कि वो सलाह कितना स्कोर करे, बट टैलेंट है। विंगर कम फॉरवर्ड, आई थिंक ही इज अ प्रॉपर फॉरवर्ड। तो वो मेरे को पोजीशन, मेरे को लगता है, मेरे को राइट विंग जब मैं सोचता हूँ ना, मेरे को कभी भी लगता है कि अगर कोई लेफ्ट फुटेड राइट विंगर है ना आपके पास जो भागता है और फिर गोल भी मारता है, वो बहुत अच्छी लग्जरी है। तो आप देखोगे साका क्या करता है, साका यू काइंड ऑफ रैशफोर्ड काइंड ऑफ अ प्लेयर बेसिकली ऑन द राइट लेफ्ट, रॉबिन काइंड ऑफ प्लेयर, रॉबिन हो गया, साका हो गया, प्रॉपर जो राइट पे खेलते हैं। तो साला उसी नहीं ब्रो, आप साला को वैसा कैटेगराइज नहीं करते। साला इज नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि साला इज लाइक मच एनहांस्ड वर्जन ऑफ अ रैशफोर्ड काइंड ऑफ थिंग। नहीं समझा, मैं बोल रहा हूँ कि रैशफोर्ड जो करता है कि ब्रेक पे निकले और मतलब एक को कटाया, मतलब शिमी पास किया और शूट में गोल मार दिया, साला भी वही मोस्टली करता है। साला ऐसा नहीं है कि वो राइट विंग पे प्रॉपरली है, फिर उसने 1-2 से कनेक्ट किया और फिर वो आया, वो उस वे में करता है पर इतना ज्यादा नहीं करता है वो। नहीं बट नहीं वो करता है बट ही नीड्स सम क्रिएटिव मिडफील्डर। पहले फिर्मिनो वाज वन ऑफ द बेस्ट, हिज पेस इज आल्सो डाउन नाउ ना। जब वो आया था तो अकेले भाग नहीं, मतलब आप सलाह का देखोगे, सलाह इज नॉट टच लाइन विंगर। हां, सलाह मतलब मिड में ही खेलता है, क्योंकि फर्मिनो ड्रॉप करता था ना, तो जो वो स्पेस है स्ट्राइकर के अराउंड वाली, स्ट्राइकर when वो पूरा विंग भाग सकता था। ये उसने मारे भाई, अकेले कितने गोल मारे। हाँ, मारे हैं, पर मैं अभी बोल रहा हूँ इस टाइम की मतलब वो रैशफोर्ड का मतलब एलीट वर्जन है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ओलिसे जो है, ही इज अ प्रॉपर विंगर, वो टच लाइन विंगर है ओलिसे उस वे में। मुझे लगता है ओलिसे इज अ बेटर फिनिशर, मतलब ही वांट्स समवन टू स्कोर एटलीस्ट सलाह टाइप गोल्स। ओलिसे वो तो नहीं करने वाला है। और एंड रन आल्सो, जैसे कि मेरे को डियाबी काफी अच्छा लग रहा था, बट उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं है। तो मैं बोला टाइप, हाँ, रॉबिन टाइप का प्लेयर चाहिए आपको, जिसको पेड्रो नेटो, बट राइट विंग नहीं है ना वो। राइट विंग और लेफ्ट विंग कौन है अभी लेफ्ट विंग में अच्छा कौन है फिर उस हिसाब से? राइट विंग बोल रहा है ना तू? राइट विंग खेलता है राइट विंग खेलता है पेड्रो नेटो। वो है अभी एक एस्टन विला वाला ही तो है, एक वो एक और है ना उनके पास, एक था अपना लेवरक्यूसन वाला बहुत अच्छा था यार, वो आएगा नहीं। हाँ, वर्ड है, हाँ वर्ड सेंटर में खेलता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ राइट विंग, मतलब सलाह को रिप्लेस करने वाला अभी वर्ल्ड में कौन है? मतलब that's my point as well कि उस वजह से मैं नहीं बेचूंगा, बट इफ आई हैड एन ऑप्शन आई वुड। तो इसलिए मैं देख रहा था बहुत ध्यान से डियाबी वगैरह को कि डियाबी कैसा खेलता है, ये हो मतलब why not think about this in this way that if you guys sell Salah now, because anyway you're not going to bring any cup, max to max तुम Carabao Cup जीत सकते हो या FA जीत सकते हो, वो भी hit and grab हुआ। Then why not start building your team from now on, because you have two players that you can cash in lots of money. One is Alisson and one is Salah. भाई बेच दो। मतलब ये owners का strategy नहीं है। Are you saying that owners are looking for more of fans? मतलब fans मतलब चाहते हैं कि सलाह अपने क्लब में रिटायर हो या मतलब ऐसे, right? He has to run out of the contract, but why not sell him, right? Because logically देखा जाए तो I think you are now in a building phase. You have to destroy the team which you have in front of you, and then you have to start building again. Exactly. और साला एक सीजन रुक के कर भी क्या लेगा? तुम उसके साथ जीत भी नहीं रहे हो कुछ। अगर प्रीमियर लीग जीत गया भाई, it's going to be a huge loss for you the next season. No, I agree. कौन compete करेगा तुम्हारे साथ? But I think कि owners भी कुछ इसके लिए नहीं कर रहे हैं। साला adds a lot of commercial value and owners also want to exactly do that. तो I think इसके वजह से भी वो रोक रहे हैं। But हाँ, ये situation नहीं होगी कि वो फ्री में जाए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो साइन करेगा और अगले साल उसको भेज देंगे। अगर वो 2 साल का भी करेगा ना, he will not leave on free. या दिसंबर में जा सकता है। No, I don't think why would he sign, bro? मेरा मतलब लॉजिकल, you are thinking from लिवरपूल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगर सलाह के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मैं क्यों लिवरपूल को पैसे दूंगा? मतलब मैं एज अ सेल्फिश पर्सन, अगर मैं पूरा एज अ मतलब प्रॉपर एथलीट कि मतलब मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, तो मैं क्यों पैसे दूंगा लिवरपूल को? मैं वही पैसे मैं खुद के लिए रखूंगा ना, क्योंकि साइनिंग बोनस
साइन इन बोनस मुझे वही मिलेगा। फीस दे या नहीं दे, फीस कितना ही दे देगा यार, अगर उसका 1-1.5 साल का साइन करता है तो 50-60 मिलियन से ज्यादा थोड़ी देगा, 100 मिलियन नहीं देंगे सऊदी वाले। तो 50-60 मिलियन वो देंगे ना, उसके बाद भी वो साला को उतना ही पैसा देंगे सऊदी में जितना हाँ वो वही ऐसे- सऊदी में ही मिलेगा एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मैं वही ऐसे बोल रहा हूँ नहीं कि वो 50-60 मिलियन के लिए वो लिवरपूल को मिलने के लिए व्हाई वुड ही साइन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि तुम नहीं, उसका ना पैसा भी नहीं बढ़ाने वाले हो उसके लिए नहीं एक साल के लिए। हो सकता है बढ़ा दें, हो सकता है कि वेज बढ़ा तो दें। तुम अभी भी तुम 350 दे रहे हो, तुम 450 तो नहीं दोगे साला को, 500 तो नहीं दोगे। हाँ दैट माइट बी ट्रू, बट मेरा पॉइंट है कि साला को क्या फर्क पड़ता है कि सऊदी लिवरपूल को ट्रांसफर फी दे रही है कि नहीं, साला तो अपना वो- फिगर करेगा सऊदी नहीं से। तो वो बोलेगा कि वही 50 मिलियन मेरे को साइन इन फर्स्ट मिल जाएगा। सबने ऐसा वही किया ब्रो, तब दैट्स व्हाई प्लेयर्स लीव ऑन। एम्बापे ने क्यों किया? एम्बापे तो पीएसजी का बिल्कुल वो था ना, तो उसने वो लास्ट ईयर साइन भी किया था, पर स्टिल वो 2 साल का, उसने 3 साल का साइन किया था, पर उसने सबको धोखा दिया। इट्स 2+1 और 1 भी जो है वो दैट कैन बी मतलब इनिशिएटेड बाय बोथ द पार्टीज, कि दोनों पार्टी से होना चाहिए तब जाके वो 1 काउंट होगा। तो एम्बापे ने वही किया, ही वो फ्री में ही किया, पीएसजी को घंटा नहीं मिला। सऊदी इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट क्योंकि वो वहीं मतलब मिडिल ईस्टर्न है, तो आई थिंक मनी इज नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम। मतलब जब उसको इतने पैसे मिल जाएंगे तो 50 मिलियन 60 मिलियन और ऊपर से लेट्स सी मिलेंगे। ब्रो, इफ यू बेट ऑन मी कि अगर आप इफ यू वांट टू पुट योर मनी ऑन दिस, आई थिंक अगर आपको सलाह ना को पैसा सलाह के मिलेगा। एंगल से सोचना चाहिए कि he has हाँ, done कि so don't much think for Liverpool. He has done so much for Liverpool. It's time to concentrate and cash in for himself. हाँ, Yeah, but best he है। only wanted to stay. That's what I also heard. कि उसको नहीं भी तो वो तो ही इज रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन की स्टेइंग एंड रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट। उसने जो स्टीव मैकमोहन ने आपके साथ किया था वो डेजावू हो रहा है I आपके think साथ। that's where it will come up to. अगर Liverpool will not want him to run down his contract, and if he wants to run down his contract, then I think he will be sold. So he can Let's still. see. को लगता Let's है, see. बट मेरे को लगता नहीं। हाँ, I agree कि दिसंबर में भी जा सकता है बाल, वो पता है, agreed. दिसंबर में भी विंटर जा विंडो में जा सकता है। मान लो हम वैसे भी पर 6 महीने के लिए फिर सऊदी पैसे देगा तेरे को, ऐसा यार लगता है? सऊदी देगा भाई, वो तो देगा सलाह के लिए। सलाह इसे मेगा सुपरस्टार, वहां जाते ही उसके सारे बिलबोर्ड्स में सलाह दिखेगा ब्रो। वो तो ठीक, वो समझ रहा हूँ मैं, पर वो सलाह को देंगे ना, वो लिवरपूल को क्यों देंगे? एज अ जस्ट थिंक एज अ बिजनेस। ज्यादा पैसे नहीं देंगे obviously। इमोशनल हटा दो, 25-30 में फिर तुम 25-30 मिलियन का करोगे क्या? नहीं 50-60 से कम में तो वैसे भी नहीं भेजो, बट उनके लिए 50-60 भी चेंज ही है। हाँ उनके लिए 50-60 भी वही है। हाँ मतलब वो तो है कि देयर इज मनी एंड देन देयर इज अरब मनी। ये हम लोग बिजनेस वाइज इतना 100% रैशनल डिसीजन होना चाहिए, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो दे देंगे। बट आई डोंट हैव एनी अदर विंगर इन माइंड हु कैन रिप्लेस हिम, दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर तो आपको ऑप्शन दिया जाए, इफ आई विल यू गिव द ऑप्शन कि यू वांट वन सेंटर बैक, वन लेफ्ट बैक, यू वांट 2 मिडफील्डर्स एंड यू विल प्रोबब्ली वांट 1 फॉरवर्ड आल्सो, ठीक है? तो 5 प्लेयर्स यू वांट, है ना? पर अभी जो न्यूज आ रहा है इतना सारा कि जो हम सुन रहे हैं डेविड ऑनस्टीन वगैरह, फैब्रिज़ियो रोमानो से, कि मतलब कि एक तो जो पीआर आता है, ठीक है, देयर इज 2 काइंड ऑफ न्यूज, वन इज पीआर एंड वन इज एक्चुअल न्यूज। तो 95% ऑफ द पीआर होता ही है कि जैसे वो एक पीआर आ रहा है कि आर्ने स्लॉट इज जजिंग हिज प्लेयर्स नाउ, वैसा कि मतलब इवैल्यूएट कर रहा है आर्ने स्लॉट और तब जाके वो डिसीजन लेगा। ये पूरा पीआर है, ठीक है, कि मतलब वो जज कर, वो भाई तू पहले से ही जज कर सकता है, तू ऑलरेडी मतलब देख के वीडियोस देख के तू जज कर सकता है अच्छे से, और 1-2 दिन में जज हो जाता है भाई तू और सेकंड थिंग, और तू अब जज करेगा तो भाई उन प्लेयर्स को प्री सीजन कब मिलेगा? भाई तो आर्न स्लॉट को भी तो सोच ले उसके हिसाब से। ही डजंट वांट टू क्रिएट अ बिग रिफ्ट ब्रो। उसको पहला सीजन उसको ठंडा चाहिए, ठंडा दिमाग चाहिए, तो वो इसी टीम से खेलेगा, क्योंकि व्हेन दे डोंट मीट हिज एक्सपेक्टेशन वो बोलेगा ये मेरा टीम नहीं है, समझ रहा है? वो आराम से बोल देगा ना ये मेरा टीम नहीं है। नहीं बट व्हाट मिसिंग इज कि वो मैनेजर है ही नहीं, वो हेड कोच। अगर वो बोलेगा भी ना मेरे को प्लेयर चाहिए, ही डज नॉट हैव द ट्रांसफर पावर्स एट ऑल नाउ। अब वो बस हेड कोच है। वो ठीक है, पर आई एम टॉकिंग अबाउट लिवरपूल्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, वैसा उस वे में कि लिवरपूल की बोर्ड की तरफ से ये पीआर आ रहा है कि मतलब कि आर्ने स्लॉट विल इवैल्यूएट द प्लेयर्स। टॉप 4 इज अ ह्यूज प्लस, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो है कि थर्ड थिंग की है ना कि अभी एक और न्यूज आ रही है कि लिवरपूल वोंट साइन मच प्लेयर्स, ये भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि मतलब ज्यादा, और आपने बता दिया कि यू नीड 5 प्लेयर्स एटलीस्ट। तो शुड एक क्वेश्चन ये कि शुड लिवरपूल फैंस टोन डाउन देयर एक्सपेक्टेशन, कि मतलब उस वे में कि भाई हम ऐसा जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट मतलब फिक्स्ड कि जैसे आर्सेनल और अपन मैन सिटी का बोल सकते हैं कि दे विल फिनिश इन द टॉप 4 वैसे, पर लिवरपूल का फिनिश फिक्स नहीं है कि दे विल फिनिश इन द टॉप 4, दे हैव टू नाउ फाइट फॉर इट। सेकंडली तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये साइनिंग्स नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी? मेरे को लगता है दो। अब तो गाली तो देना पड़ रहा है ना, मतलब थोड़ा मतलब आपकी तरफ से मैंने अभी तक ओनर्स को गाली नहीं सुना है मेरा ब्रो अभी तक। तूने सुना है? वो तो जब क्लॉप उन्होंने बोला था, क्लॉप को डिफेंड करने के लिए उन्होंने ओनर्स को गाली दिया, बट नाउ अब आउटलुक के लिए भी तो गाली देना पड़ेगा ना कि आगे क्या होने वाला है। जब हम चैंपियंस लीग जीते थे ना और क्वाड्रुपल जीतने वाले थे ना, मैं तब भी ओनर को गाली देता था।
क्योंकि मैं तेरे को कहानी बताता हूँ हितेश, तो हम टट्टी लोग को हरा के तुम जीते थे वैसे भी। कौन सी टट्टी को हरा के टॉटनहम। टॉटनहम। ये तो वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी। हाँ, तो बायर्न को मारा था ना क्वार्टर में, और सेमीफाइनल में बारसा को, वो भी तो देख। एनीवे मेरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ तेरे को। मैं एक बार जब जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब तू नहीं आया था ना हितेश, तो जब हम लोग संग्राम खेलने जा रहे थे, तो जब लौट रहे थे ना, तो हमको एक बिजनेस केस सॉल्व करना था। क्वांटिटेटिव मेथड्स 2 करके सब्जेक्ट होता था। तो उसमें वो मनीबॉल मूवी देखी है ना, जिसपे ये लोग काम करते हैं, जो ना नंबर्स दे रहा हूँ, तो वो एक्चुअल वो केस था, ठीक है। उसको सॉल्व कर रहे थे हम बस में, क्योंकि जाके असाइनमेंट सबमिट करना था। हम संग्राम गए हुए थे मैच खेलने के लिए। तो उसमें वो एक बेसबॉल टीम पे बेस्ड था, ठीक है। वो 2008 का केस था, ठीक है। पता तेरे को वो ओनर कौन था जो 2008 का जो मनी बॉलिंग का क्रंच करना था, और वो सक्सेस हो जाता है बाय द वे, वो नंबर्स का सक्सेस या क्रोइंकी था वो। हाँ, क्रोइंकी उन्हें था। वो जिलेट एंड हिक्स थे, अच्छा। जो उस समय लिवरपूल के भी ओनर थे। तो ये जो परसेप्शन बना हुआ है ना कि सिर्फ इन्होंने मनी बॉलिंग करी है, इन्होंने चेंज कर दिया है गेम, और किसी को आती नहीं है, ये तो मैं फैक्ट से बोल सकता हूँ कि ये झूठ है। जिलेट एंड हिक्स ने भी करी थी, वो साइन करते थे कॉन्चेस्की वंचेस्की को, उसमें लो वैल्यू प्लेयर, यंग एज में, एज कैटेगरी में, अच्छा नहीं करेगा तो बेच देंगे, अच्छा कर गया तो विल गेट द बेस्ट ईयर्स आउट ऑफ हिम। ये इन्होंने नहीं इन्वेंट किया है। हाँ, इनका एनालिटिक्स और इनकी हायरिंग अच्छी है कि माइकल एडवर्ड्स, जूलियन वार्ड जैसे लोग इनको मिल गए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ओनर्स को तो मैं कभी पसंद नहीं करता हूँ। उनका वो सोचते हैं कि मैं 50 मिलियन में प्लेयर खरीदूं, उससे अच्छा 10 मिलियन में पीआर कर देता हूँ। उनका पीआर देखना। वो जब हमने एंडी कैरल को खरीदा था ना, तो उन्होंने बोला, एक बड़ा सा लेटर लिखा था कि वी विल नॉट मेक एनी ये इररिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। उनका कहने का मतलब था हम पैसे नहीं खर्च करेंगे। तो वो 100 मिलियन खर्च करने के बदले 10 मिलियन का पीआर कर देते हैं हमारे वो, और वो हर बार यही कर रहे हैं। और इसलिए ही मैं कभी भी रेट नहीं करता था कि हम कभी भी कहीं फिनिश करें। हमने 4 साल 8 ट्रांसफर विंडो में एक टियागो खरीदा था, एक मिडफील्डर, और लास्ट के 2 ईयर उन्होंने क्यों रन बेचा कि हम बेलिंगम को खरीदेंगे, और लास्ट में बोल दिया कि अरे बेलिंगम कैसे खरीद सकते हैं, उसको तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उससे अच्छा 2-3 प्लेयर खरीद लो। तो ये तो तुम पहले भी कर सकते थे। पर उसमें आगे मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन ही लगता है कि यू बॉल्ड, मतलब तुमने काइसेडो के लिए 110 मिलियन वो बिड किया था, और उसके बाद बट एक होता, मेरे को तो 100% ये डाउट लगता है कि वो ऐसी बिड करते हैं, उनको पता है वो नहीं जीतेंगे। वो नहीं जीतेंगे, बिड किया था, बट क्यों नहीं किया? काइसेडो का रिप्लेस तुम उगाटे को क्यों नहीं लाया? वो ऑप्शन में जाओ तो गांड फट जाती है ना वो वाली Bro, चीज। maybe it was a sign, sort of a sign for कि Klopp भाई रह ले, we are trying to sign players, right? नहीं, I don't think. I think Klopp peace Klopp is this reason कि उसने, देखो, एक लोग जो तुम लोग भी बोल रहे थे ना कि क्लॉप मोरिनो की तरह गंद क्यों नहीं मचाता। तुम जिसके एम्प्लॉय होते हैं ना, तुम्हारे को एम्प्लॉयर होता है, तुम एक लिमिट में ही गंद मचा सकते हो। मैं लिवरपूल का हर इंटरव्यू देखता हूँ, क्लॉप ने इनफ रीड बिटवीन द लाइंस दिए हुए हैं कि भाई नहीं है पैसे, हमको इस टाइम पे साइनिंग करनी, उसने इनफ बोला हुआ है। उसने हर बार एक प्लेयर शॉर्ट, एफएसजी ने हमेशा एक प्लेयर शॉर्ट कराया हमें। अरे तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्रो खर्च करो ना, तो क्यों नहीं कर रहे हो खर्च करो ना। वो नहीं करते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए नहीं करते। तू उनके कभी ट्विटर चैनल पे जा, जो बेसबॉल का है, बॉस्टन रेड सॉक्स नाम है उनकी टीम का, उस पे जाके देख, उनको सेम गाली पड़ती है। वो नहीं करते। और पता है, मेरे को शक लगता था कि ये इट्स एन अमेरिकन थिंग, और आर्सेनल के ओनर्स भी यही करते थे, क्योंकि तू अगर नहीं, पर आर्सेनल फैंस का बस मैं बोल रहा हूँ कि आर्सेनल फैंस गाली देते हैं, वो क्रोंकी आउट चल रहा है उनका कितने साल से, उनके पैसे लिवरपूल से डबल खर्च किए हैं। हाँ, और तब भी उनका क्रोंकी आउट चल रहा है। लेकिन एफएसजी आउट, अभी एफएसजी आउट आपका थोड़ा सा चलता है, फिर 1-2 साइनिंग्स हो जाते हैं, और फिर एफएसजी सारे के सारे एफएसजी, फिर एफएसजी आउट चलता है, फिर थोड़े से साइनिंग, ये साइकिल, मतलब वही साइकिल ही है तुम्हारा पूरा। क्लॉप की अच्छी चीज है, एफएसजी की बुरी चीजों को कवर कर देती थी। मैं वही बोलता हूँ ना, हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर इंडिया ओलंपिक में 10 मेडल जीत ले, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द स्पोर्टिंग सिस्टम, इट इज इन स्पाइट ऑफ द स्पोर्टिंग सिस्टम। वो इतना खराब है, उसके बावजूद वो लोग उसको ओवरकम कर रहे हैं। दैट वाज हाउ क्लॉप वाज अंडर एफएसजी। तो क्लॉप के अचीवमेंट्स में लोग बोलते थे ऐसा सही तो चल रहा है, अभी क्यों करना है, ये लॉजिक आ जाता था। वो हर जब हम जीते हैं तभी भी उन्होंने एक प्लेयर शॉट दिया। जो तुमको वो सीजन याद है जब हमारा ओजान कबाक और रीस विलियम्स खेलते थे, जब तुम्हारे सेंटर बैक सारे इंजर्ड हो गए थे, पता है, उसमें भी उन्होंने एक प्लेयर शॉट करा था। उन्होंने करा क्या था, लॉवरेन को बेच दिया था 11-11.5 मिलियन में, और उसके पिछले सीजन मिलनर को लेफ्ट बैक का बैकअप खिलाया था। तो हमको एक लेफ्ट बैक भी खरीदना था, तो उन्होंने ये पैसे लिए लॉवरेन वाले 11.5 मिलियन, और सिमिकास को खरीद लिया सेम अमाउंट में। बट उन्होंने लॉवरेन को रिप्लेस नहीं करा। हमारे पास तीन ही सेंटर बैक हो गए, जिसमें से एक मार्टिप है, वन डाइक है, और एक और था उस समय कोई, गोमेज भी था। मार्टिप और वन डाइक पूरे सीजन के लिए चले गए। उसके वजह से हेंडरसन सेंटर बैक खेला, हेंडरसन अच्छा खेल रहा था, फिर वो भी इंजर्ड हो गया।
फेबिनियो सेंटर, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट था पूरा। नहीं, क्यों? लिवरपूल हमेशा से ऐसे ही है ना, पर लिवरपूल नहीं, पर कभी उसके लिए marquee क्लॉप भी signings थोड़ा नहीं करती है ना? नहीं, तो उसके लिए इंजरी के लिए तो क्लॉप को भी थोड़ा मतलब वो है ना आपका कि मतलब तुम्हारा ऑल्टरनेट सीजंस क्यों चलता है, क्योंकि तुम एक सीजन में इतना भाग लेते हो, इतना भाग लेते हो, इतना भाग लेते हो। क्लॉप का जो गेगन प्रेसिंग वाला सिस्टम है कि मतलब हाँ। वो निचोड़ देता है प्लेयर्स को पूरा का पूरा, नहीं, वो but आपको ही I पता think है। if you have enough क्योंकि backups, पॉच को भी हम इसीलिए गाली दे रहे थे, चेल्सी का कॉन्टेक्स्ट देखोगे कि पॉच का जो सिस्टम है वो मतलब क्लॉप से मिलता नहीं है किसी भी एंगल पे। मैं बोल रहा हूँ कि वो भगाता है बस उसी में जो नहीं, वो कर but रहा था। Klopp, I think it's beyond तो भगाना है। चेल्सी का भाई इतनी इंजरी है सीजन, आप देखोगे कि सारे की कितने सीजन इंजरी रही है हाँ, सीजन। तो मेरा क्लॉप पॉइंट, का ओनर्स चेल्सी की जो इस सीजन की इंजरी थी उसको तो काउंट ही नहीं कर सकते, तो इतने नंबर्स थे कि प्लेयर का नाम भूलने लग गए थे हम लोग जो खेल रहे थे। बट लिवरपूल का मैं बोल रहा हूँ कि एक प्लेयर कम साइन करने से इट इज अ कैस्केडिंग इफेक्ट जो पूरे टीम को इफेक्ट करती है। पता है वो जो सीजन था ना जिसमें ओजान कबाक वगैरह खेल रहे थे, तो उसमें अगर अच्छा डिफेंडर होता, इंजरी नहीं होती ना उसमें, पता है उसका जो चैंपियंस लीग का राउट था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था, एक मैड्रिड को बस मारना था, वो काफी आसान था, वो लीग भी उतनी अच्छी तभी तो हम उस चैंपियंस लीग जीते, बिकॉज आई वाज स्केयर्ड कि जब लिवरपूल ये मैड्रिड का मैच था, क्योंकि मेरे को पता था कि लिवरपूल काइंड ऑफ ए बोगी टीम फॉर चेल्सी, कि सारे के सारे जो फाइनल्स है ना वो हम हार ही रहे हैं। अभी तक मैंने देखा है सुपर कप हारा, फिर ये यूरोप 2 में नहीं सीजन जीत पाती चेल्सी। सुपर कप हारा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पक्का लिवरपूल से हार ही जाते हैं हम। तो मैं मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा था कि मैड्रिड को जिताओ, कि ताकि हम मैड्रिड को तो हरा सकते हैं, वी हैव ए चांस ऑफ डिफीटिंग मैड्रिड। My मेसन माउंट ने point हरा हुआ है तो will never sign players, वो कभी नहीं करें, वो कुछ पीआर कर देंगे। अब उन्होंने शुमेनी, मैं मानता हूँ कि शुमेनी को वो खरीदना चाहते थे, बट मेरे को गुस्सा इस पे आता है कि वो बोलते हैं कि इस लेवल का प्लेयर नहीं है तो हम नहीं ही खरीदेंगे। तो दैट इज अ लाई कि उस लेवल के कुछ तो प्लेयर होंगे ना, मतलब कोई बैकअप तो होगा, यू कैन हैव नंबर 2 3 4। तुम ये कैसे बोल सकते हो कि वन डाइक वाला चीज हो गया कि वन डाइक के अलावा हमको किसी को नहीं खरीदना तो हम यही फॉलो करेंगे हमेशा, बिकॉज यू हैव नॉट साइंड अ मिडफील्डर फॉर 4 years। तो मतलब कैसे कैसे चल रहा है, तो आई हाँ, थिंक और तुम्हारा मिडफील्ड कभी अच्छा वैसे भी नहीं था। इनका पूरा क्लब ही वैसा है ना, मतलब दे डोंट स्पेंड दैट मच, आई थिंक दे आर लाइक अ दिनेश, सस्टेनेबल। तेरे को याद है हमने फर्स्ट एपिसोड जो हमने किया था वो हाँ, हमने discuss किया exactly. था कि है ना लिवरपूल ने है ना कभी भी कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं प्लेयर खरीदा साइन है। नहीं किया। जब वो उस टाइम पे वर्ल्ड क्लास है, उस टाइम पे जो वर्ल्ड क्लास है। वही तो क्लॉप का क्रेडिट दे रहा था कि जितने प्लेयर्स नहीं, बन पर गए ना, लिवरपूल फैंस ऐसे आते हैं हमारे ट्विटर पे वगैरह कि अरे नहीं, कि हमारा जो पुल पावर है ट्रांसफर विंडोज में वो चेल्सी से बहुत ज्यादा है, आर्सेनल से बहुत ज्यादा है, इससे बहुत ज्यादा है। नहीं क्योंकि तुम्हारा नहीं, तो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि लिवरपूल का ट्रांसफर पुल किसी से भी ज्यादा नहीं है। मैं टॉटनहम से भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कोई एग्जांपल ही नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि एनी प्लेयर यू हैव साइंड हु वाज वर्ल्ड क्लास बिफोर। तो लोग हैं ऐसे, देयर आर इनफ प्लेयर्स हु रिजेक्टेड अदर टीम्स एंड केम, बट मैं बोल रहा हूँ उसका रीजन क्लॉप है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लिवरपूल और एफएसजी एज सच। या तो प्लस वहां पे कोई रहना भी नहीं चाहता उधर। आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। आई थिंक मैनचेस्टर ज्यादा खराब जगह है रहने के लिए। नहीं, कंपेयर टू लंदन वैसा। लंदन तो बेस्ट है, लंदन तो बेस्ट है, बट इन जनरल साउथ अमेरिकन होते हैं वो तो पूरे इंग्लैंड में ही नहीं रहना चाहते, फॉर एग्जांपल। हाँ, वो मतलब तो है। आई मीन पे स्केल वाला इतना मतलब इट्स नॉट एन एग्जॉर्बिटेंट क्लब, राइट? इट्स नॉट अ लग्जरी क्लब की मतलब It has net spend lower than West Ham, Aston Villa and many relegation clubs if you see by last 2 seasons. तो where will you go? लोग बोलते हैं कि नेट स्पेंड मत देखो, नेट स्पेंड ही तो देखना होता है, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग प्लेयर्स, तो तुमको खरीदना तो पड़ेगा ना। व्हाट इज द अदर ऑप्शन? और ऐसा भी नहीं है कि तुमको बोल रहा है कोई कि 8 प्लेयर खरीदो, तुम 4 साल में एक भी मतलब वही है दिनेश, कि तेरे पे- मतलब दे गिव क्रेडिट, राइट? दे आर लूजर्स एनीवे, सो दे गिव क्रेडिट इन द सेंस कि हम लोग खर्च नहीं करते हैं ज्यादा, इसलिए मतलब दे आर ओके विद बीइंग 2, राइट? ओके Yeah, I बीइंग द don't- नंबर 2 क्लब, मतलब वही I think टेंच ऑफ वाइटनेस इन देयर रेड जर्सी। मतलब अभी तो compete हो गया ना, इसलिए इतना competitive हो गया लीग, राइट? नाउ यू कांट गो इन अ वॉक अवे, राइट? क्योंकि अब तो क्योंकि अब ये आप मतलब बहाना, मतलब मेरे लिए बहाना मतलब एक्सक्यूज तो बोल ही नहीं सकते हो कि हम स्पेंड नहीं करते, क्योंकि अब तो एस्टन विला भी स्पेंड कर रही है यार। हाँ। एस्टन विला ने देखो कितना स्पेंड किया है अभी, इतना जब वुल्स स्पेंड कर रही है। टॉटनहम ने स्टेडियम बना लिया एंड देयर नेट हाँ। स्पेंड इज हायर देन आवर्स, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं नहीं, है। डैनियल लिवी हाँ। भी सेम ही है। डैनियल लिवी इज वन ऑफ द मोस्ट मतलब सस्टेनेबल क्लब रनर है वो, मतलब हाँ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उसके स्टेक होल्डर्स के लिए वो परफेक्ट क्लब रन हाँ, करता मतलब है। वही है कि My मतलब point is कि हमको हमेशा बोर्ड लगता है, इज नॉट फॉर द फैंस। वो डैनियल एक लिवी एक किसी ने कमेंट मारा था ना कि लिवरपूल बोर्ड मेंबर्स। एक किसी ने कमेंट किया था पता है बिग 6 पे या कोई पॉडकास्ट पे कि लिवरपूल आर स्पाइसी स्पर्स वैसा। देखो दे यार, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को लगता था ये अमेरिकन थिंग है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्रॉन्कीज का भी ऐसा ही था। होता क्या है ना कि इफ यू विन द टाइटल वर्सेस यू फिनिश फोर्थ, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द प्राइज मनी।
तो इनको लगता है कि फोर्थ पे तो क्या ही दिक्कत है, बट इफ यू सेव दैट मनी इन ट्रांसफर क्या दिक्कत है, हम हाइप कर देंगे, ब्रांड बना के नहीं, रखेंगे। एक्चुअली वो नो वन वांट्स द प्राइज मनी टू बी द नंबर वन टारगेट फॉर विनिंग द प्रीमियर लीग. इट्स बेसिकली व्हाट कम्स आफ्टर विनिंग द प्रीमियर लीग. यू हैव रैलीज, यू हैव शो डाउन्स, उसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग, जर्सी खरीदते हैं. यू हैव स्पेशल एडिशन जर्सीज जो मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल जर्सी से 3 गुना 4 गुना रहता है कि चैंपियनशिप आर्सेनल का जो इनविंसिबल जर्सी इनविंसिबल वाला जर्सी अभी भी मतलब इज वन ऑफ लाइक 1000 पाउंड समथिंग है, 7-8 हज़ार का है मतलब. मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में मैं दिनेश ये पॉइंट बोला था कि यार ये जो क्यूट साइनिंग्स वाला जो चीज है ना, कि मतलब मैं 20 मिलियन पे साइन करके आई वुड क्रिएट अ प्लेयर ऑफ 80 मिलियन काइंड ऑफ थिंग, जो लिवरपूल कर रही थी, ये इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग. ये हमने बाकी क्लब्स में भी देखा है ना, लोअर लेवल कि जो हमने इसमें देखा, ये साउथहैम्पटन में देखा हमने, ठीक है, कि साउथहैम्पटन जो कर रही थी, उनके पास अब अच्छे प्लेयर्स याद है उस टाइम पहले वगैरह कितने बढ़िया प्लेयर्स थे उस टाइम उनके पास सारे. ये टॉटनहम का जो डीप लाइन नंबर 6 था वो भी वहीं से आया था, क्या नाम था उसका यार, वाइनामा. हाँ, वो कितने अच्छे प्लेयर्स उन्होंने बनाए थे, ठीक है. पर क्या हुआ, एक साइकिल तुम्हारा टूटा कि तुमने थोड़ी बहुत गंदी साइनिंग्स कर ली तो योर साइकिल ब्रेक्स, उसके बाद तुम्हें वापस उस साइकिल पे आना बहुत मुश्किल होता है. सेम चीज ब्राइटन के साथ हो रही है. ब्राइटन ने ये काइसेडो वगैरह अच्छे साइन कर लिए थे, बना के अच्छे से 100 मिलियन में बेच दिए, पर नाउ दे आर नॉट एबल टू रिप्लेस देम अच्छे से बिल्कुल. तो लिवरपूल के साथ सेम चीज है कि मतलब वो जो साइकिल है ना, नाउ इट हैज ब्रोकन. तो उस साइकिल पे आने के लिए तुम्हारे अब है ना 3-4 साल 5 साल लगेंगे. राइट, मैं बोल रहा हूँ ऑन पेपर इट शुड हैव बीन ब्रोकन अंडर क्लॉप ओनली. अगर तुम्हारे पास तुमने कोई राइट बैक साइन ही नहीं किया ट्रेंट के अलावा, ऑन पेपर इफ ट्रेंट इज इंजर्ड यू शुडंट विन एनी गेम. और इसलिए मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि उसने 3 महीने कॉर्नर को खिलाया और हम जीतते गए मैच. चेल्सी वाले मैच में भी तो ब्रेडली ने पहला था ना. तो मेरा वही पॉइंट है कि क्लॉप यही कर रहा था कि चलो तुम पैसे नहीं दोगे, मैं इस सीजन के लिए तो आई विल गिव क्रेडिट टू क्लॉप अ लॉट. इस सीजन तो भाई उसी का एड्रेनलिन और उसी का ड्रग से हुआ है सब कुछ. जो हमारा इंजरी सीजन था ना सेंटर बैक वाला, उसके पहले वाले सीजन में हम लोग लीग हारे थे 1 पॉइंट से ना. उसमें पता है मिलनर लेफ्ट बैक का बैकअप था यार. मिलनर लेफ्ट बैकअप खेलता था. नहीं रिमेंबर वो बर्नार्डो सिल्वा को उसने फाउल भी किया था और फिर किसी ने उसको रेड नहीं किया था. सब रेड कर रहे थे. पीपल आर लाइक ना, जो भी व्यूअर्स जो सुन लो यार, वी आर नॉट, आई मीन हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि जो क्लॉप है इज ए मिड मैनेजर. हम लोग ये बोल रहे हैं कि वी गिव हिम क्रेडिट. आई मीन उसने जो किया, ही हैज चेंज्ड द एंटायर डायनामिक फॉर लिवरपूल टीम. मतलब जितना हम लोग प्रेज दे रहे हैं उतना भी उसको क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज एक साइड में उसने चेंज किया गेम स्टाइल एंड एवरीथिंग. मे बी ही हैज टू चेंज एवरीथिंग एल्स. I don't think he could have changed anything. मतलब that is not your no, thing, तो right? then he should have demanded from the owners more. जो मरीनो करता है, मरीनो इसलिए सक्सेसफुल है, मरीनो करता है तभी तो वो अलग-अलग जाके जीता ना, अलग-अलग जाके जीता वो. मोरिनियो कहीं 8 साल रहना ही नहीं वाला. मोरिनियो इज नॉट अ गुड. 8 साल रहना इज नॉट अ ग्रेट थिंग ब्रो इफ यू आर नॉट विनिंग. वेंगर को गाली इसीलिए तो पड़ती है उसने अपने पहले नहीं मरीनियो तो क्लॉप भी कहां खड़ा है. क्लॉप ने क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा क्लॉप ने अपने लीग में. 3 साल में यार तुर्की में बैठा है मोरिनियो. तो क्लॉप भी अभी चला जाएगा थोड़े दिन बाद तुर्की वर्की 1-2 से गया. मोरिनियो को फायर करते हैं लोग. कंपैरिजन नहीं है. तो कंपैरिजन क्यों नहीं है कि वंस यू आर अ परफॉर्मर इन अदर कंपनीज और एक है तुम एक ही कंपनी में रह के तुम ऐसे सरकारी नौकरी कर रहे हो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. मोरिनियो ने टॉटनहम में खराब किया, उसने यूनाइटेड में खराब किया. तो वो उसका पास्ट हो चुका था, पर उसने पोर्टो में सही किया, उसने चेल्सी में अच्छा किया, उसने इंटर में सही किया, उसने मैड्रिड में गार्डियोला का वो लेगेसी तोड़ा. जो गार्डियोला जो क्लॉप का एक सीजन जीता ना क्लॉप, तो मरीनियो को पहले, क्योंकि गार्डियोला को 3 लोगों ने सिर्फ लीग हराई है आज तक. एक मरीनियो, एक कॉन्टे और एक क्लॉप. ठीक है, 3 लोगों ने हराई है उस वे में. तो मरीनियो पहले ही बहुत कुछ कर चुका है. उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड को उसके स्टेट दो, उसके बाद लिवरपूल वो दोबारा आया, उसे चेल्सी वो दोबारा आया, उसने फिर कुछ किया. क्लॉप ने 2 बुंडेसलीगा टाइटल, वैसा मतलब अब आप मरीनियो से बिल्कुल आप मरीनियो को तो ऐसे हटा रहे हो कि जैसे मरीनियो इज नो वन. मरीनियो चेंज द प्लेइंग स्टाइल. आप जो बोल रहे हो कि क्लॉप चेंज द प्लेइंग स्टाइल, मरीनियो आल्सो चेंज द प्लेइंग स्टाइल. क्योंकि पहले है ना 4-4-2 खेलते थे लोग. मरीनियो ब्रिंग 4-3-3 उस वे में. नहीं मैं इस चीज को बात कर रहा हूं. मरीनियो इज अ मच मतलब बड़ा मैनेजर है. क्लॉप के कहीं मतलब ही इज नॉट एबल टू साइड फुटलेस, वैसा वो बोल रहा हूं मैं. मरीनियो क्लॉप दूर तक कंपैरिजन है. मरीनियो इज वन ऑफ द ग्रेट्स. क्लॉप मतलब 2 लेवल नीचे है. टाइट शूटलेस. तो उस हिसाब से भाई किस लॉजिक से जो बुंडेसलीगा में करा है ना, मरीनियो को 7 जन्म लाएंगे, वो कभी नहीं जीत पाता दूसरे क्लब. अरे उससे किया भाई, पोर्टो में वो चैंपियंस लीग जीता है. वो बुंडेसलीगा बोला ना मैंने. अरे चैंपियंस लीग में चैंपियंस लीग जीता है वो. हां तो पोर्टो जीता. मैं तो बोल रहा हूं
तो पोर्टो थोड़ी बोल रहा हूँ, चैंपियंस लीग जीता, वो तो बहुत क्लॉडियो बड़ी बात है, रैनिरी भी कर गया था, लेस्टर में प्रीमियर लीग जीत गया था। लेस्टर प्रीमियर लीग का बहुत बड़ी बात है, वो वन ऑफ द सीजन हो सकते हैं वैसा। वन ऑफ द सीजन तो नहीं था नहीं, क्लॉप दो बार जीता है, मैं वो दो बार जीता है, फाइनल में भी पहुंचा है, मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन वो जीता नहीं है वो फाइनल। मरीनो ने जो उसमें किया था, क्या बोलते हैं, पोर्टो के साथ जो चैंपियंस लीग जीता था, ट्रेबल जीता था पोर्टो के साथ, दैट इज अ बिगर थिंग। उसने क्रेडिट कम ले रहा है कि मोरिनियो उसके ये नहीं, मोरिनियो के सामने कंपेरेबल नहीं, कंपेरेबल कैसे नहीं है भाई? मरीनो से तो वो दूर दूर तक कंपेरेबल नहीं है ब्रो। फिर हजार दूर तक साला के सूट ले नहीं, चांस ही नहीं है, वैसा कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलो गाइस, आई मीन ये डिबेट तो चलते रहेगा। आई थिंक वी हैड एन एक्साइटिंग कन्वर्सेशन। एक बार प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, मतलब कि हाउ द सीजन प्रेडिक्शन इज गोना बी। आई मीन दैट्स व्हाट, राइट, प्रेडिक्शंस हो गया यार, वो टॉप 4 तो इज मतलब उनके लिए ओवर अचीवमेंट है। bonus, top 4 is a bonus Top 4 is a bonus, of course. I think that's a pretty good way. as yet तो अभी प्रेडिक्शन नहीं बता पाएंगे कि कौन कहाँ फिनिश करेगा, it's too early, वो भी है थोड़ा, बट या आई मीन सबको पता है ओवरऑल तो सिटी टू विन द लीग और वो सब Yeah. So Rohan, यार, thanks for joining this podcast यार, this has been an entirely Wonderful episode. So I mean कुछ हम लोग फैंस देखो ऐसे ही हम लोग डिबेट करते हैं, एंड एट द एंड ऑफ टाइम वी डोंट फाइंड एनी एनिमोसिटी, राइट? ये सिर्फ डिबेट्स है, एंड वी सॉर्ट ऑफ हैव आवर ओन ओपिनियंस। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैक्ट हो जाता है, जैसे इसने बोल दिया सलाह से ज़्यादा हुआ है तो सलाह बेटर नहीं है, हज़ार्ड ने इसने बोल दिया तो हज़ार्ड बेटर। इट्स ऑल ऑफ ओपिनियंस, वी आर शेयरिंग ओपिनियंस। तो प्लीज़ अपने ओपिनियंस भी अपने हमारे इसमें कमेंट्स में शेयर करना। वी लाइक टू हियर, जो पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे इंट्रैक्शंस मिले, एंड वी वुड लाइक टू डू द सेम। सो पाल, व्हाट अबाउट यू? सो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रीव्यू हो गया है सीजन का, लिवरपूल का प्रीव्यू हो गया है, सो विल हैव टॉटनहम प्रीव्यू, विल हैव आर्सेनल प्रीव्यू, विल चेल्सी प्रीव्यू, विल सम ऑफ द अदर गेस्ट। एंड रोवर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, इट वाज वंडरफुल एपिसोड। मतलब ऐसा अभी तक किसी से मतलब ऐसे हीटेड डिबेट्स नहीं हुए अभी तक जो आपके साथ है, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन। ये मतलब और एक्स्ट्रा हेट तो लिवरपूल के लिए वैसे भी आता ही है, मतलब मेरी तरफ से तो वो आता है कि वी लॉस्ट द फाइनल्स टू देम, उस वे पे कि लास्ट 4 फाइनल्स वी हैव लॉस्ट टू देम। सो रोवर, टेल मी, मतलब हाउ आर योर एक्सपीरियंस ऑन द पॉडकास्ट? नहीं बहुत मजा आया यार, ऐसे ही होना चाहिए। आई सॉ द यूनाइटेड वाला आल्सो। ये बात बहुत ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि अच्छा सीजन हो, मुझे नहीं लगता, बट यार वो तो हमें भी नहीं लगता है। वो तो हमें भी लगता है कि वो लेनी यूरो 18 साल का ही है भाई, तो काम डाउन काम डाउन। तो बड़ा इट वाज ग्रेट। हमने 2 घंटा हो गया ना, पता भी नहीं चला। इट वाज नाइस। या वंडरफुल, कीप द गुड वर्क। Yeah. So bye guys. Have a bye guys, wonderful day. viewers. Please watching the videos. Please subscribe. Please like and please comment on the video. Thank you.